Okay, so just to introduce Ali Bhai to everyone, Ali Bhai is he has many profiles. He's a teacher, he's a trainer, he's an educator, he's a motivational speaker, and he delivers regular sort of character building workshops on parenting to the youth from their platform Youth Club Lahore. And उसके अलावा जो है अली भाई ने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी है from GE, and then he's gone on to do his postgraduate diploma in applied psychology. So he focuses on self development from an Islamic perspective. He's also the team head, as I mentioned, for Youth Club and Azan Institute as well. So Ali Bhai, the floor is yours. Jazakallah khair once again for joining us. And Jazakallah khair. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. It is really an honor for me to be talking to all of you. क्योंकि माशाल्लाह I've been told कि audience में parents भी हैं and the staff is also here and many esteemed people must be listening to this. So it is really an honor for me and all the praise is to Allah. बेशक अल्लाह ही तारीफ के लायक है, हम सब अल्लाह ताला के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं. So as Yasin bhai said कि I'm attached with some Dawa organizations and alhamdulillah since 2007 engaged with youth in a very positive manner. Or back in 2011 we formed this organization alhamdulillah which is Youth Club, or currently it is working for the moral and spiritual upliftment of the youth. That is a brief intro. Baki, the reason I did PhD in psychology is I realized while studying psychology for my CSS exams, I've appeared in CSS exam. So my subject was psychology in CSS exam. So I realized कि ये चीज़ ज़रूर हमें पढ़नी चाहिए, because psychology tells us about human being and human mind. And when I actually read about it in detail, I realized कि Subhanallah, Islam वाकई ही perfect ज़ाब्ता हयात. It is really the revealed way of life. ये वही जो है ये वाकई ही God की तरफ से revealed है. Because the more psychology you read, the more you appreciate Sunnah, the more you appreciate Quran Majid, the more you appreciate Wahi and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and the way of life जो Allah ताला ने way of life हमारे लिए नाजिल कर दिया है. Literally इंसान सजदे में गिर पड़ता है कि इतना flawless way of life है, which caters every need, spiritual need, physical need, mental need, intellectual need, psychological need and emotional need as well. All types of needs को ये cater करता है in the most best manner. So alhamdulillah, this was just a brief intro and why I selected psychology as my postgraduate diploma. So coming to the topic, अच्छा topic पे भी आने से पहले please let me know अगर मेरी voice में कोई lag आए, मेरी video आप ना देख सकें या मेरी slides आप ना देख सकें, please let me know, because we are online, internet का connection हो सकता है थोड़ा बहुत fluctuate करे, so please you have to let me know. So the topic I've selected is Generation Z, and now I'm going to share the slides और कुछ देर बाद मैं अपनी video भी off कर दूंगा so that all the focus is on the slides inshallah ta'ala. As I was saying, the topic of today is Generation Z. Now, most of you must be wondering कि who are Generation Z? Generation Z कौन है और क्या ताल्लुक है इसका, इस टर्म का क्या ताल्लुक है आज के टॉपिक के साथ? देखिए, जनरेशन जी कोई दीनी टर्म नहीं है, किसी कुरान की आयत हदीस में नहीं आए. जनरेशन जी इज अ टर्म गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट टू दोज चिल्ड्रन हु आर बोर्न बिटवीन 1995 एंड 2000. यानी कि आज के जो टीनेजर्स हैं उनको जनरेशन जी कहा गया है. और हर जनरेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नाउ all of us, parents, teachers, counselors, tarbiya heads, headmasters, principals are dealing with this generation called Generation Z. Since ये हमारी dealing इनसे हो रही है, it is incumbent upon us to understand कि what are the characteristics of Generation Z. जाहिर है जिनसे हम interact कर रहे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनकी हम तरबिया कर रहे हैं, जिनको हम टीच कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है ताकि हम उनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी स्ट्रेटजीज बना सकें with regards to teaching, with regards to parenting,
And believe you me, 21st century में especially ये the last 10 years have drastically changed the education system of the world. If you look at the the Finnish system and the Japanese system, if you do a deep study of it, you will realize how much education system throughout the world is changing because of chemical changes in the brain of the youth, of the teenagers. आज के बच्चे केमिकली से मेरी क्या मुराद है, देखिए हमारी एक बायोकेमिस्ट्री होती है, हमारा एक ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन से हार्मोन्स जो है वो सेक्रीट होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्मोन्स निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन से निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स मैसेज को कैरी करते हैं, हमारे बिहेवियर को न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन इज फेमस टू बी द कॉज फॉर हैप्पीनेस. देन व्हेन वी एक्सरसाइज तो एंडोर्फिन निकलता है. Then when we are appreciated, when we complete a task, तो dopamine निकलता है. These are all neurotransmitters, ये chemicals हैं और ये हमारे behavior को affect करते हैं ये chemicals. So जो neurochemistry इस वक्त teenagers की है, it has changed drastically over the 10 years. आप imagine भी नहीं कर सकते कि 1995 में जो born हुआ है और जो 2000s में born हो रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है when we talk with regards to neurochemistry. तो जनरेशन Z के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, व्हाई दे बिहेव इन द वे वी सी. पेरेंट्स के साथ बहुत क्लैशेस होते हैं, उनके प्रायोरिटीज ही डिफरेंट हैं, दे आर मोर अटैच्ड, दे आर मोर डिमांडिंग एंड उनका फोकस बहुत जल्दी लूज हो जाता है. आपने देखा होगा कि क्लास में अगर आप एक स्टूडेंट को, बल्कि ये आप चैलेंज भी कीजिएगा किसी स्टूडेंट को कि 30 सेकंड के लिए क्लास 6 और 7 का बच्चा खड़े होकर दिखा दे, उसने कुछ भी नहीं करना, 30 सेकंड के लिए बस वो खड़ा होकर दिखा दे, यू विल सी कि आफ्टर 5 to 10 सेकंड्स वो या अपनी उंगलियां हिलाने लग जाएगा, या उसकी टांग हिलने लग जाएगी, या कुछ ना कुछ वो करने लग जाएगा. सो इट हैज बिकम अ चैलेंज फॉर टीचर्स कि बच्चों को पढ़ाएं कैसे, बच्चों को चुप कैसे कराएं, बच्चों को इन्वॉल्व कैसे करें. और पेरेंट्स के लिए भी इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है कि पेरेंट्स को नहीं समझ आ रही कि हमारे टीनेजर्स कहाँ जा रहे हैं. हम उन्हें दीन सिखाना चाहते हैं, दीन की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली दीन से मतलब आई शुड नॉट बी यूजिंग दिस वर्ड, बट द रियलिटी इज मोस्ट ऑफ आवर यूथ बदजन है दीन से, और दीन को लिटरली वो अनकूल समझते हैं. ये जो आजकल कूल का एक वर्ड चल रहा है ना, कूल, दैट आई शुड बी कूल, तो दे कंसिडर दीनी पीपल एंड दीन टू बी अनकूल. सीधी सी बात है. What's the reason for that? And what's the reason कि पेरेंट्स से मसला हल नहीं हो रहा बहुत से पेरेंट्स से, और टीचर्स के लिए भी एक चैलेंज बन चुका है. तो यही हमारा आज का सेशन है. सो fasten your seat belts. Inshallah, you're going to have a roller coaster ride because I'll be mentioning some psychology भी मेंशन करूंगा इंशाल्लाह, और उसको फिर रिलेट करूंगा आज की सिचुएशन से, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि टीनेजर्स के साथ हमने कैसे डील करना है. सो लेट्स स्टार्ट with realizing कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरा पर पैदा किया. हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, और फितरा के 2 एट्रीब्यूट्स जो इस वक्त थ्रेटन हुए हैं, हर इंसान के वो 2 एट्रीब्यूट्स, फितरा के एट्रीब्यूट्स थ्रेटन हुए हैं, उनको चैलेंज किया जा रहा है, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है इन 2 एट्रीब्यूट्स को. दैट्स व्हाई पेरेंटिंग इज सच अ चैलेंज, एंड दोज 2 एट्रीब्यूट्स आर हया एंड एम्पैथी. You should know कि हया and empathy both are from the फितरा. आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जब जन्नत में, उन्होंने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि फल से, आपने दरख्त से फल नहीं खाना है, तो सूरह अल-अराफ की आया है कि जब उन्होंने खाया, their private parts became exposed, उनके private parts expose हो गए, and the first act they did was covering their private parts. यानी हया इंसान की फितरत में, modesty is in the fitra of human being. फिर the first act that आदम अलैहिस्सलाम did, you will be amazed to know, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके सारे ऑफस्प्रिंग्स दिखाया आलम इरवा में, सही हदीस बता रहा हूं. और आदम अलैहिस्सलाम की नजर जब अपने एक ऐसे बेटे पर पड़ी, एक ऐसे ऑफस्प्रिंग्स पे जो बहुत ग्लो कर रहा था, चमक रहा था, उन्होंने पूछा, या अल्लाह ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा, दिस इज योर सन दाऊद अलैहिस्सलाम, बिकॉज दाऊद अलैहिस्सलाम की वर्शिप बहुत फेमस है, क़यामुल लैल बहुत फेमस है, उनके रोजे रखना बहुत फेमस है. तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसकी एज कितनी है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, इसकी एज 60 ईयर्स है. तो आदम अलैहिस्सलाम ने रिक्वेस्ट की कि अल्लाह, गिव 40 ईयर फ्रॉम माई एज टू माई सन. The first act that our father did was the act of giving. So empathy, feeling for others, being sensitive towards others, taking care of others.
These are top two attributes of fitra, and both of them are challenged, both of them are in danger. हमारे बच्चों की in a very synchronized manner, in a very arranged manner, in a very unbelievable manner, मीडिया के थ्रू, और लिटरली वो जो इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो इस वक्त वर्क कर रही है ये दो चीजें खत्म करने के लिए, एम्पैथी एंड ऑब्वियसली हया. नाउ द कंसर्न फॉर टुडेज साइकोलॉजिस्ट इज, मैं आपको साइकोलॉजिस्ट के कंसर्न बता रहा हूं. How will our younger generation treat older people? How will they treat the teachers? How will they treat the administrators? How will they treat the parents? जब हया और एम्पैथी ही गई तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग. फिर मीम्स भी बनेंगी, फिर जो है वो किसी भी पीक पे जाके दुश्मनी भी लगेगी, छोटी छोटी बात पे जो है वो एंगर भी आएगा, क्योंकि जब एम्पैथी ही नहीं है so how they're going to treat the older people, because older people are way more sensitive than the younger people. Older people require a lot of time, so that is a threat, that is a challenge. And how they're going to treat the teachers and the parents when they have no empathy whatsoever. There have been experiments conducted in schools कि children have become very less empathetic. Bullying की बहुत बड़ी वजह क्या है? एक दूसरे को bully करना, being less empathetic, not feeling any empathy. There have been videos that children, they are beating each other and the other children is making a video. उसका खून निकल रहा है, खून निकलने की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यानी there is no empathy to stop that fight. Rather, the children are enjoying, they are clapping. There are many such incidents. Okay, yes, I know there are very good children, there are very good schools all around us. लेकिन ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो ये दो चीजों पे हमला है, और इन दो चीजों पे हमले की वजह, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं, इंसान को एजुकेटेड बनाती हैं. एक एजुकेटेड बंदे में हया नहीं है, उसमें एम्पैथी नहीं है, तो फिर उसके एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है. सो तरबिया के पर्सपेक्टिव से और पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से ये याद रखिए कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स में और आप अपने बच्चे में हया और एम्पैथी रख रहे हैं तो आप इंशाल्लाह एक कामयाब टीचर हैं, एक कामयाब पेरेंट हैं. नाउ द रीजन हया और एम्पैथी क्यों कम होती है, उसका ताल्लुक भी ब्रेन की केमिस्ट्री के साथ है, न्यूरो साइंस के साथ है, हमारे वे ऑफ लाइफ के साथ है, लाइफस्टाइल के साथ है, टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ है, पेरेंटिंग के साथ है, द कंटेंट दे आर वाचिंग इसके साथ है, बहुत से और फैक्टर्स हैं. सो क्विकली आई विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेशन जी? जनरेशन जी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या? दे आर मोर ग्लोबल. मैं और आप 90s के स्टूडेंट्स हैं, हम 90s में क्लास 2-3 में थे, 2000s में ओ लेवल में थे. हम इतने ग्लोबल नहीं थे, हमें नहीं पता था चाइना में बैठा स्टूडेंट क्या कर रहा है, अमेरिका में बैठा स्टूडेंट क्या कर रहा है. आई नेवर न्यू जापानीज स्टूडेंट क्या कर रहा है, आई डिडंट नो इंडियन स्टूडेंट क्या कर रहा है, बट टुडे दे नो एवरीथिंग. यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट काइंड ऑफ मीम्स आर कमिंग, कैसी मीम्स बन रही हैं, स्टूडेंट्स के क्या रवैये हैं, स्टूडेंट्स के मजाक क्या होते हैं, स्टूडेंट्स ग्लोबली किस तरह से चल रहे हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर. सो सिंस दे आर ग्लोबली कनेक्टेड, दैट इज अ चैलेंज फॉर अस. The content needs to be global as well. The content needs to be a visionary content as well, because they are thinking global. Our children are thinking global. So we need to think global as well. Number two, they are under the influence, always under the influence, because this is the age of influencers. Vlogger, Twitter accounts हैं, उनके Insta हैं, footballers हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स बन गए आज बच्चों के. ऑल द टाइम दे आर अंडर प्रेशर, अंडर द इन्फ्लुएंस, दे फील लेफ्ट आउट. जब वो आप उनको मोबाइल फोन्स नहीं देते, उनको इंस्टा नहीं देते, उनको ट्विटर नहीं देते, दे फील लेफ्ट आउट, दे फील एंजाइटी कि मैं पीछे रह रहा हूँ. सब लोग जो है वो इंस्टा पर बैठे हुए, मैं इंस्टा पर नहीं बैठा हुआ, मैं फेसबुक पे नहीं बैठा हुआ, मैं व्हाट्सएप पे नहीं बैठा हुआ. दैट क्रिएट्स एंजाइटी इन देम बिकॉज दे आर ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस. And believe you me, इस चीज ने इतना नुकसान किया है कि children have lost respect for teachers because they're influenced by the influencers. They only respect those teachers. ये मैं आपको टीनेजर की साइकी बता रहा हूँ, माजरत के साथ अगर कोई बात सख्त लगे, लेकिन this is how it is according to me, कि such an age has come that they will only get impressed by someone
with following, with Facebook following, with YouTube following, with number of subscribers, with an Insta following. हमारे दौर में उल्टा था कि हम टीचर की इज्जत किसी और रीजन से करते थे। ड्रास्टिकली चेंज हो गया है एक टीनेजर का जो माइंड है टीचर की रिस्पेक्ट के हवाले से, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। एंड देन दे आर मोर डिमांडिंग, अनबिलीवेबली डिमांडिंग। If you think you can satisfy them with very simple content in your teaching, then you're wrong. इतनी डिमांड बढ़ चुकी है because all the time they are seeing things, वैरायटी इतनी पड़ी हुई है इंटरनेट पे, ग्लोबली वो कनेक्टेड हैं, उनके वन क्लिक पे कुछ भी मिल जाएगा। समटाइम्स दे विल बी कंप्लीटिंग योर सेंटेंसेस। आप उन्हें हदीस बता रहे होंगे, कुरान की आयत बता रहे होंगे, दे विल नो क्या वी ऑलरेडी नो दिस, you will be sharing stories with them, they'll tell you कि I already know about this story। and अंदर की बात बताऊं तो उनके जहन में पहले से रद्द चल रहा होता है, बॉसों के जहन में, कि मैंने इस पॉइंट को रद्द कैसे करना। this is how brain chemistry is, unfortunately। उसकी मैं रीजन आपको बताऊंगा why is it like that। so now they have become more demanding, और इसका ताल्लुक डोपामीन के साथ है। इंशाल्लाह I'll come to it। eager to stand out, because everyone is famous, everyone has subscribers, now they are eager to stand out, eager to do something। this is positive, but this can be negative as well, because teachers के पास अब मौका है उन्हें challenges देने का, because they are eager to stand out। okay, so this could be positive or negative both। after experiences, since they are globally connected, social media पर बैठे हुए, they are sharing their experiences, they are more open about their experiences, they are more vocal now। ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस। एंड देन प्रो सोशल, दिस इज अ वन पॉजिटिव एस्पेक्ट, अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट इज सिंस दे नो व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड द प्लेस, तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ गई है। ये स्टैटिस्टिक्स है बाकायदा इस पे कि स्टूडेंट्स आर नाउ मोर वेल अवेयर ऑफ देयर ओन राइट्स एज वेल एज दे आर मोर अवेयर ऑफ अदर पीपल्स राइट्स। However, because empathy and haya is in danger, is in threat, तो बड़े कम ही लोग हैं जो एक्चुअली इस चीज से फायदा उठाते हैं, प्रो सोशल होने से फायदा उठाते हैं। So these are some of the characteristics of Generation Z। They are more global, always under the influence, more demanding, eager to stand out after experiences, pro social। And let me share a case study with all of you। There is a friend of mine, he's PhD from Canada, behavioral scientist है, behavioral psychology है उनकी, पर्सनल कंडक्टेड स्टडी है, पीएचडी का थीसिस है। उन्होंने एक सैंपल लिया नंबर ऑफ टीनेजर्स का, फिर उन्होंने एक सैंपल लिया ओल्ड पीपल का, दोनों को उन्होंने वीडियो गेम्स खिलाई। अब जब उन्होंने एमआरआई स्कैन किया ओल्ड लोग का, ब्रेन का स्कैन किया, तो ब्रेन एक्टिविटी बहुत मुख्तलिफ थी फ्रॉम अ टीनेजर। डोपामीन सेंटर्स टीनेजर्स के बहुत बड़े थे, ओल्ड पीपल के डोपामीन सेंटर्स इतने बड़े नहीं थे। डोपामीन सेंटर्स क्या होते हैं, ये आगे टॉपिक इंशाल्लाह आ रहा है, लेकिन अभी आप कंक्लूजन सुन लें। उन्होंने वन आफ्टर द अदर गेम्स खिलाई, ओल्ड को भी और टीनेजर्स को भी, और ओल्ड पीपल से जब जाकर पूछा कि आपको गेम कैसी लगी, तो इतना वो एक्साइटेड थे, इतना खुश थे, उन्होंने कहा कि यार कमाल कर दिया आपने, टेक्नोलॉजी यहाँ पर चली गई है, हमें तो पता ही नहीं था, मतलब इतनी जबरदस्त गेमें आना शुरू हो गई, हमारे दौर में ऐसा कुछ नहीं होता था। दूसरी गेम खिलाई, वो उससे भी खुश थे। नाउ टीनेजर्स की तरफ आए, टीनेजर्स ने कहा ये भी कोई गेम है, ऐसी बड़ी हमने गेमें खेली हैं, इससे भी अच्छी अच्छी आ गई, हम आपको बताते हैं इससे अच्छी अच्छी क्या है। अगली गेम खिलाई, उस पर ज्यादा एतराज कि ये तो उससे भी बुरी थी। दिस वॉज द बिहेवियर जिससे उन्होंने कंक्लूड ये किया, सिंस द डोपामीन सेंटर्स हैव बिकम सो लार्ज, they are extremely demanding। खुशी नहीं, और ये अनग्रेटफुल एटीट्यूड के नहीं, द एटीट्यूड फॉर टू हैव मोर, टू हैव मोर, टू अचीव मोर, टू हैव मोर एप्रिसिएशन। बिकॉज फेसबुक पे लाइक के लाइक मिल रहे हैं, एक पिक्चर लगाई 100 लाइक्स आए, 50 लाइक्स आए, डोपामीन की वैल्यू बढ़ी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह से डोपामीन आ रही है, डिमांड बढ़ चुकी है कि नहीं अब आसानी से खुश नहीं होंगे। अब जो है वो आईफोन 6 से खुश नहीं होना, अब आईफोन 10 से खुश होना है, आईफोन 12 से खुश होना है। अब सैमसंग के हम फोन से, गैलेक्सी से खुश नहीं होना है, नोट 5 आएगा तो खुशी मिलेगी। this was the experiment that they have become more demanded and actually ungrateful। बाकी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, आई टोटली एग्री, मैं इतना मायूस आपको नहीं कर रहा, बट जो हकीकतें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कुछ आपसे।
लेट्स डेल्व डीप इनटू अ टीनेजर्स ब्रेन, टीनेजर्स माइंड। ये मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखा रहा हूं और जो आपसे रेलेवेंट है मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी इसे कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंड देन दिस पार्ट एमिगडाला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ये ब्रेन के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। The front part of the brain, the prefrontal cortex, is remodeled last. Let me share this very interesting thing with you. It is scientifically proven कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बचपन में बनना शुरू होता है, लेकिन ये बनते बनते अच्छे खासे साल लगते हैं और ये पीक में बन जाता है 40 साल। 40 ईयर में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पीक रीच हो जाती है, यानी फुली डेवलप हो जाता है। इसके न्यूरॉन्स, इसका जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है फुली डेवलप्ड है। लेट मी टेल यू दिस वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि टीनेजर्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी कम बना होता है, बनना शुरू हुआ होता है, डेवलप हो रहा होता है। नाउ व्हाट इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर? ये आप सबको पता है, साइंस इतनी तरक्की कर गई कि आज हमें ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से पता लग रहा है कि फलाने पार्ट का क्या फंक्शन है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन है, एमिगडाला का क्या फंक्शन है, पॉन्स का क्या फंक्शन है, मेडुला का क्या फंक्शन है, सेरिबेलम का क्या फंक्शन है, हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है। ओके, ये फंक्शंस बाय द वे मैंने कुछ लिखे हुए। द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज द डिसीजन मेकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, responsible for your child's ability to plan and think about the consequences of actions, solve problems and control impulses. Self control से इसका ताल्लुक है, डिसीजन मेकिंग से इसका ताल्लुक है, और कॉन्सिक्वेंसेस देखने से इसका ताल्लुक है, और एनालिटिकल एबिलिटी से इसका ताल्लुक है, द एबिलिटी टू एनालाइज। Because the prefrontal cortex is still developing, teenagers might rely on a part of the brain called the amygdala to make decisions and to solve problems more than the adults do. कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि टीनेजर्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ना अभी डेवलप हो रहा होता है, इसीलिए जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप टीनेजर को कराएंगे, आईक्यू कराएंगे, मैथ्स कराएंगे, वो जल्दी डेवलप होने के चांसेस हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के, बिकॉज दैट्स हाउ न्यूरॉन्स मेक कनेक्शन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। सिंस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ, एमिगडाला को यूज करेंगे। एमिगडाला इज द इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। It is associated with emotions, impulses, aggression, and instinctive behavior. Now the equation becomes clear to you, situation becomes clear to you कि आप टीनेजर को कह रहे होते हैं कि यार तुम्हें समझ नहीं आ रही, सिगरेट पीने से जो है वो नुकसान होता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं लगती? उसे समझ कैसे लगेगी? वो एमिगडाला से सोच रहा है, उसका थिंकिंग पैटर्न एमिगडाला डिजाइन कर रहा है, जो कि इमोशनल पार्ट है। वो कॉन्सिक्वेंसेस को उस तरह नहीं देख सकता जिस तरह आप देख सकते हैं। उसका कॉन्सिक्वेंस ये नहीं है कि मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, वो ये देख रहा है कि अगर मैंने सिगरेट ना पिया, अगर मैंने कोई बुरी हरकत ना की तो मेरे पीयर्स क्या कहेंगे, उसके लिए ये कॉन्सिक्वेंस है। मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मैं कूल नहीं होऊंगा, मैं सेलिब्रिटी को कॉपी कैसे करूंगा, वगैरह वगैरह। दिस इज हाउ दे थिंक। दैट्स व्हाई पीपल से ना कि इमेच्योर थिंकिंग होती है टीनेज में। हम सब टीनेज से गुजरे। अब मुझे यकीन भी नहीं आता कि मैं टीनेज में कैसी कैसी सोच रखता था। लिटरली अब मुझे गुस्सा चढ़ता है कि मेरी ये सोच होती थी, हाउ फुलिश आई वाज टू बी ऑनेस्ट। अब मुझे पेरेंट्स में रश्क आता है, प्यार आता है कि कितना बर्दाश्त किया है पेरेंट्स ने हमें। यानी हम इतने बेवकूफ होते थे, हम इतने इमेच्योर होते थे, और कैसे बर्दाश्त किया हमारे पेरेंट्स ने हमें। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, और सारे पेरेंट्स को जज़ाए खैर दे। कितना सब्र किया उन्होंने, कितने प्यार से तरबियत की, किस तरह बर्दाश्त किया, फुलिश मिस्टेक्स को बर्दाश्त किया। Now you know that because prefrontal cortex is not fully developed, so your teenager student, your teenage child is relying on amygdala, and that's why his decision making is weak. That's why he is not really able to see all the consequences. इल्ला ये कि अल्लाह की उस पे बहुत रहमत हो। ऐसे बच्चे होते हैं जो consequences भी देख लेते हैं, लेकिन generally speaking, this ability to analyze, decision making, seeing consequences, and obviously problem solving and control impulses, self control is weaker. There is a reason आप एक स्टूडेंट को 10 बार समझाएंगे कि ये ना करो, वो फिर भी करेगा। आप उसे 10 बार कहेंगे चुप हो, फिर भी करेगा। जब तक पनिश नहीं कर देंगे, जब तक वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले लेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं कर देंगे, वो करता रहेगा, क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है, उसके काबू में ही नहीं है ये चीज।
उसका सेल्फ कंट्रोल कितना वीक है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एमिगडाला उसे फोर्स कर रहा है कि अटेंशन सीकिंग लो। मोस्ट स्टूडेंट्स डू थिंग्स फॉर अटेंशन सीकिंग, शोर करते हैं अटेंशन सीकिंग के लिए, आवाजें निकालते हैं अटेंशन सीकिंग के लिए, क्योंकि एमिगडाला फोर्स कर रहा है कि तुमने मशहूर होना है। डोपामीन फोर्स कर रहा है कि यू नीड अप्रिसिएशन, यू नीड टू बी फेमस अमंगस्ट योर पीयर्स, इसलिए ये हरकतें करो। तो कैसे हैंडल करना है ये इंशाल्लाह हमारा लास्ट टॉपिक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी 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 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और यकीन करें अगर आप इन हॉर्मोन्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे टीनेजर्स के साथ। यू विल एक्चुअली सिंपथाइज विद देम कि यार इट्स रियली हार्ड बीइंग अ टीनेजर, यू नो, एंड इट्स रियली हार्ड बीइंग अ टीनेजर बिकॉज जिन फितनों में हमारा टीनेजर रह रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। जो प्रेशर ग्लोबली उस पर आ रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते। जो दज्जाली फितना इस वक्त अनलीश कर दिया गया है हमारी यूथ के लिए, हमारे दौर में कुछ भी नहीं था। अभी हमारे केमिकल्स के साथ किस तरह खेला जा रहा है, हमारी बायोकेमिस्ट्री किस तरह चेंज की जा रही है, किस तरह हमें हया बेहया और लेस एम्पैथेटिक बनाया जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दीज हॉर्मोन्स। सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट कोर्टिसोल। कोर्टिसोल इज रिलीज बाय द एड्रीनल ग्लैंड व्हिच इज इन द किडनीज। किडनीज इसीलिए जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, देखिए कोर्टिसोल इज पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए, मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं गली में और सामने सांप आ गया, या आप एक बिल्डिंग में जलजला आ गया अचानक, या आप बिल्डिंग में आग लग गई है, आपने ना इधर देखना है ना उधर देखना है, आपने दौड़ लगा देनी है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जानी है। दिस इज पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कि ये बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, फिजिकल चेंजेस आ रही, घबराहट होने लग गई है। दिस इज अ प्रूफ ऑफ हॉर्मोन्स। कोर्टिसोल किडनी से रिलीज किया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, आपके मसल्स को मूव कराता है कि भागो दौड़ो यहां से। यानी सोचें क्यामत वाले दिन कोर्टिसोल किस लेवल पे होगा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि एक बच्चे के भी बाल ग्रे हो जाएंगे। बालों का ग्रे होना कोर्टिसोल से ताल्लुक रखता है साइंटिफिकली स्पीकिंग। यानी जब बंदा क्यामत का मंजर देखेगा कि ये हो क्या रहा है, तो इमरजेंसी ऐसी लगेगी कि उसके होश उड़ जाएंगे। एक हामला औरत जो है उसको मिसकैरेज हो जाएगा कोर्टिसोल की वजह से, स्ट्रेस लेवल की वजह से। कोर्टिसोल इज द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस, and it is actually a good chemical in the sense कि it makes you prepared for emergency situation. However, अगर आपके बच्चे में कोर्टिसोल लेवल बढ़ गया है तो याद रखें, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब कोर्टिसोल एक्टिव होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं हो सकता। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द काउंटर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आप घबराहट फील करते हैं, फिर कुछ देर बाद काम डाउन भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक और तरह का हार्मोन निकलता है जो आपको काम डाउन करता है, एंडोर्फिन, सच एज एंडोर्फिन, वो आपको काम डाउन करता है। ये अल्लाह ताला का निजाम है, होम्योस्टेसिस कहते हैं इसे साइकोलॉजी में। क्या खूबसूरत निजाम है अल्लाह ताला का। हाउएवर, अगर आपका कोर्टिसोल बहुत लेवल पे निकल रहा है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त ब्लॉकेज में होता है, वो उस वक्त खतरे में होता है। इसीलिए देयर हैज बीन अ स्टडी कंडक्टेड इन अमेरिका कि दोज चिल्ड्रन हु वर फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर थी। आपको पता है ना, ऐसे घरानों में हर वक्त इमरजेंसी सिचुएशन होती है, मियाँ बीवी में लड़ाई, घर का माहौल खराब, माँ बच्चों से पॉलिटिक्स डिस्कस कर रही है, फैमिली वालों को बुरा कह रही है, बाप अलग कोस रहा है फैमिली वालों को, बच्चा हर वक्त स्ट्रेस में, इमरजेंसी में है, डांट पड़ रही है, फिर कभी पानी आना बंद हो गया है, कभी खाना नहीं है, राशन नहीं है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ पुअर होती है, उनका कोर्टिसोल लेवल बच्चों का बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन होता है ब्लॉक हो जाता है। ग्रोथ, आईक्यू सप्रेसर है कोर्टिसोल और ग्रोथ सप्रेसर है, याद रखिए। इसीलिए वो बच्चे जो इतने स्ट्रेस में नहीं है, जिनके घरों का माहौल अच्छा होता है, इसीलिए प्लीज एज अ पेरेंट अपने घरों का माहौल अच्छा रखें। बच्चों के सामने कभी इख्तलाफ शो ना करें, एक दूसरे को बुरा ना कहें बच्चों के सामने डिसएग्री ना करें, बच्चों के सामने कभी भी लड़ाई ना करें।
कोई भी खानदानी पॉलिटिक्स बच्चों के सामने शेयर ना करें। इफ यू वांट योर चाइल्ड टू हैव अ वेरी गुड फ्यूचर, टू हैव वो प्रॉपर नशोनुमा अगर आप अपने बच्चे की चाहते हैं, घरों से लड़ाइयां खत्म कर दें, घरों से स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म कर दें। अगर आपके बच्चे का कोर्टिसोल लेवल ज्यादा है तो फिर कोर्टिसोल इज अ IQ suppressor, kills brain cells, stops growth, creates insecurity। बच्चा इनसिक्योर हो जाएगा, हर वक्त उसके माइंड में फियर चल रहा होगा। जब उसके माइंड में फियर चल रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेगा, एनालिटिकल एबिलिटी कहां जाएगी? इट शैटर्स कॉन्फिडेंस। लिटरली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, चिल्ड्रन विद अ हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, उनके कंधे झुके होते हैं, उनकी चाल ही और होती है। एंड चिल्ड्रन विद हाई ऑक्सीटोसिन, उनकी चाल कॉन्फिडेंट होती है। अभी मैं ऑक्सीटोसिन पे आऊंगा। It triggers survival mode. All the time that child will be in survival mode, not in a a confident mode या growth mindset नहीं होगा उस बच्चे का। उस बच्चे का mindset survival mindset होगा, failure mindset होगा। What if I fail? What if I fail? How will I survive? How will I compete? How will I compete with my cousins? How will I compete with my peers? मेरे कजन के पास आईपैड है, मेरे पास आईपैड नहीं है। हर वक्त कोर्टिसोल लेवल चल रहा है। And it causes psychological disorders, lots of them: anxiety, phobia, bipolar mania disorder, so on and so forth. अब मैं आपको कोर्टिसोल के बारे में क्यों समझा रहा हूं? जब हम बच्चे को इस इमरजेंसी सिचुएशन में रखते हैं, स्ट्रेस में रखते हैं, कि बजाय कि उसकी हेल्प करने के, एक एडिक्ट की हेल्प करी जाती है ना। एक एडिक्ट को अगर आप डांट देंगे कि छोड़ दो, ये तुम क्या कर रहे हो, वो और प्रेशर में आ जाएगा, वो और स्ट्रेस में आ जाएगा। हमारे बच्चे लिटरली मोबाइल फोन्स के एडिक्ट हैं। कंसिडर देम एडिक्ट्स, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। कंसिडर देम एन एडिक्ट लाइक दैट एडिक्ट हु इज ऑन अ फुटपाथ। ये मैं बहुत अजीब बात कर रहा हूं, अगेन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट की बात है कि दिस एडिक्शन इज डेफिनेटली लाइक द एडिक्शन ऑफ मैरिजुआना एंड ड्रग्स। जब एक ड्रग एडिक्ट हमारे सामने आता है तो हम उसका कोर्टिसोल लेवल मजीद नहीं बढ़ाते। हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा फैसिलिटेटिंग एटीट्यूड होना चाहिए। हमारा काम है बच्चे को फैसिलिटेट करना, हेल्प आउट करना, पॉजिटिव बिहेवियर सिखाना। अगर हम उसको सप्रेस करते रहेंगे, आते जाते देखेंगे मोबाइल यूज कर रहा है, छोड़ दो मोबाइल छोड़ दो, आते जाते डांटेंगे, वो स्ट्रेस में मोबाइल यूज करेगा, उसका कोर्टिसोल लेवल रिलीज होगा, उसका कोर्टिसोल लेवल हाई जाएगा। एक टाइम आएगा वो कहेगा कि यार मैंने इनकी बात ही नहीं मानी, वो छुप के यूज करेगा, वो फ्रेंड्स के पास जाके यूज करेगा, वो लड़ाई करेगा, वो झगड़ा करेगा। आप उसको कहेंगे असर की नमाज हो गई, मोबाइल छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि अगर वो मोबाइल छोड़ेगा तो उसको एंग्जाइटी होने लगेगी। और आपकी बात वो इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि for him or her you are the person who has caused that anxiety। ये है हमारी पेरेंटिंग में एक मिस्टेक थोड़ी सी, कि बच्चे को हर वक्त डांटने की बजाय और स्ट्रेस फील कराने की बजाय बच्चे को एजुकेट करें, बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से बताने की कोशिश करें, पॉजिटिव बिहेवियर सिखाएं अपने एटीट्यूड से। उसे बताएं बेटा मैं इस तरह मोबाइल यूज करता हूं, इतने आवर्स के लिए यूज करता हूं, आप भी ये सीखो। उसको एजुकेट करें मोबाइल्स के कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स बताकर, एग्जांपल्स दें, रियल लाइफ एग्जांपल्स दें। तरबिया के लोग का ये काम है, उन्हें एग्जांपल देकर समझाएं। एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन शॉर्ट, एजुकेट देम रादर देन इंक्रीजिंग देयर कोर्टिसोल लेवल। कोर्टिसोल इंक्रीज होगा तो वो रेबेलियन पे आएगा, वो इनसिक्योर हो जाएगा, वो आपसे इनसिक्योर हो जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। आते जाते अगर आप उसको ताने मारेंगे, स्ट्रेस फील कराएंगे और कहेंगे बंद करो ये, दैट्स द फर्स्ट थिंग। ऑक्सीटोसिन, अच्छा बाय द वे बुलिंग जिन स्कूल्स में होती है वहां कोर्टिसोल लेवल बहुत हाई होता है स्टूडेंट्स का, दैट्स व्हाई दे डोंट डू वेल इन स्टडीज। Oxytocin is the chemical which is released by the hypothalamus and by the posterior pituitary gland. Actually, posterior pituitary gland is in hypothalamus. Oxytocin is a wonderful chemical responsible for empathy. औरतों में
बाय नेचर अल्लाह ने मर्दों से 10 टाइम्स क्या 100 टाइम्स शायद ऑक्सीटोसिन ज्यादा डाला है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, बट ये मेरा अंदाजा है। ऑक्सीटोसिन ममता का केमिकल है। ममता कहते हैं ना, ममता जाग गई। औरतें, देयर इज अ रीजन औरत रात जागकर बच्चे को पालती है, मर्द आराम से जाके दूसरे कमरे में सो जाता है। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। औरत निग्लेक्ट नहीं करेगी बच्चे को, उठ जाएगी, सारी रात जागना पड़े जागेगी, अगले दिन जॉब पे भी जाएगी, बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। दिस इज द लव केमिकल। इसीलिए जानवरों को भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना। दिस इज द लव केमिकल। इट एनहेंसेस चांस फॉर प्रेगनेंसी एंड स्टफ लाइक दैट। ऑक्सीटोसिन एम्पैथी का केमिकल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एम्पैथी, caring and giving, enhances confidence, enhances critical thinking, sense of ownership and responsibility। साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं आपसे। ऑक्सीटोसिन कैसे बढ़ता है? हैंड शेक करके, गले लगा के, किसी की बिला वजह हेल्प करके, किसी से प्यार का इजहार करके, सारे वो चीजें जो एक्चुअली देखी नहीं जा सकती, सिर्फ फील की जा सकती हैं। यानी वो सारी चीजें जो इन शॉर्ट इस्लाम ने आपको करने को कही है। साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन दैट पीपल हु हैंड शेक अ लॉट एंड पीपल हु हग अदर्स अ लॉट, बुढ़ापे में लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं जब उनका लाइफ पार्टनर फौत हो जाता है? क्योंकि नाउ दैट पर्सन इज एलिमिनेटेड जिसके साथ उनका फिजिकल टच था। अब बच्चे भी उन्हें गले नहीं लगाते इतना ज्यादा, या कुछ खानदानों में लगाते हो, तो बुढ़ापे में ओल्ड पीपल दे लिटरली गेट डिप्रेस बिकॉज ऑक्सीटोसिन की डोज नहीं मिल रही। दैट्स वाई बुढ़ापे में उन्हें बच्चों को साथ रखना बहुत पसंद है। दादा दादी को, नाना नानी को गले से लगा के रखते हैं बच्चों को। ऑक्सीटोसिन की डोज मिल रही है, बच्चा पूरा ऑक्सीटोसिन है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आए, बच्चे को आकर उठा लें बस अपने घर में, आपका वर्कलोड सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है ना हाइपोथैलेमस से, posterior pituitary gland से, you feel very happy, you feel relaxed, actually relaxed, not happiness का chemical और है, I'll come to it। ऑक्सीटोसिन कैसे बढ़ता है? सलाम करने से, हैंडशेक करने से, गले लगाने से, हर वो काम करने से जिसमें मेहनत है और मेहनत करके सेंस ऑफ अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हु डू प्लांटेशन, हु डू गार्डनिंग, उनका ऑक्सीटोसिन लेवल ज्यादा होता है। जो लोग अपने बच्चों को पेट पाल के देते हैं और वो पेट की टेक केयर करते हैं, बिल्ली की, तोते की, पैरट की, चिड़ियों की, किसी भी चीज की, कोई पेट पाल लेते हैं और बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं कि पेट आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसे खाना देना है, पानी पिलाना है, यू हैव टू लुक आफ्टर दिस पेट। गार्डनिंग कराते हैं, एक कैक्टस प्लांट ला के देते हैं, पौधा देते हैं, गार्डनिंग की जिम्मेदारी बच्चे को देते हैं। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन उस बच्चे का ऑक्सीटोसिन लेवल ज्यादा होता है क्योंकि उसमें एम्पैथी पैदा हो रही है और उसमें जो है वो सेंसिटिविटी पैदा होती है। जो बच्चा हर वक्त मोबाइल फोन में लगा हुआ है, उसका डोपामीन बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन किल हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं, वो लेस सिंपैथेटिक होगा। लिटरली दैट चाइल्ड बिकम्स अ ज़ॉम्बी क्योंकि उसका ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी है ही नहीं ऑक्सीटोसिन की। इसलिए पेरेंट्स को टिप ये है, अपने बच्चे को गार्डनिंग कराएं, उसको इस तरफ लगाएं, घरों में कुछ पौधे लेकर आए, उसको कहें लुक आफ्टर दीज थिंग्स। स्कूल्स को भी यही एडवाइस है कि वो प्लांटेशन चीजें, क्योंकि पौधों के साथ इंटरेक्ट करके एम्पैथी पैदा होती है। यस, एनिमल्स की टेक केयर करके एम्पैथी पैदा होती है। जिम्मेदारियां दें बच्चों को, उनको कोई ना कोई एक्टिविटी दें जिससे ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। तो मैंने आपको 2 एक्टिविटीज बताई है, मोर यू कैन सर्च। That's why handshake is also encouraged in our team. Now, cortisol versus oxytocin. कोर्टिसोल के स्ट्रेस फैक्टर्स हैं एवैल्यूएशन, पीयर प्रेशर, कल्चरल हॉस्टिलिटी, वर्कप्लेस बुलिंग। इन सब से स्ट्रेस बढ़ता है, कोर्टिसोल बढ़ता है। व्हेन द चाइल्ड इज ओवर इवैल्यूएटेड, और हमारे कल्चर में ओवर इवैल्यूएशन है। कैसे? तुम्हारे कजन ने इतने ग्रेड्स ले लिए, उसने इतने ग्रेड्स ले लिए, उसका ए स्टार आया, तुम्हारा ए क्यों नहीं, ए स्टार क्यों नहीं आया? यू नो, इवैल्यूएशन, ऑल द टाइम इवैल्यूएशन। It is okay to evaluate, but over evaluation increases stress and cortisol. Peer pressure, immense peer pressure, immense peer pressure. एक बच्चा क्लास में ऐसा आ गया जो रैप सुनता है, जो नेटफ्लिक्स देखता है, जो फेसबुक बहुत यूज करता है, दैट चाइल्ड इज गोइंग टू, वो मतलब आग की तरह जो है ना, जैसे आग फैलती है,
पेट्रोल पेट्रोल जो है उसकी एग्जांपल है कि पेट्रोल से आग बढ़ती है, तो वो वाला काम करता है, बिकॉज पीयर प्रेशर बहुत होता है ना बच्चों पे कि ही इज कूल। कल्चरल हॉस्टिलिटी, जाहिर है जब हॉस्टाइल कल्चर हो, लोग एक दूसरे से रवैये ही अच्छे ना रखें, कोर्टिसोल रिलीज होता है, वर्क प्लेस बुलिंग, लॉट ऑफ बुलिंग। एम्पथी, गिविंग एटीट्यूड, गुड लिसनर, रिस्पेक्टफुली, ऑक्सीटोसिन के ट्रिगर हैं। वेन एवर यू शो एम्पथी, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। वेन एवर यू आर अ गिवर, you know, our children are not givers, they are just takers. मुझे दो, me myself and I, only me and me। ये है हमारे बच्चों का फिलहाल की बायोकेमिस्ट्री, मेजॉरिटी की। देयर आर वेरी फ्यू चिल्ड्रन हु विल एक्चुअली गिव, हु विल एक्चुअली शेयर। ये है पेरेंटिंग असल। मेक योर चाइल्ड अ गिवर, गुड लिसनर। वेन एवर अ पर्सन इज अ गुड लिसनर, उसका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ऑक्सीटोसिन। थैंक, इस्लाम ने कितनी तरबियत की, जजाकल्ला कहो, वेलकम कहो, शुक्रिया कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, ऑल द टाइम पॉजिटिव वर्ड्स, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है। व्हाट अ वे ऑफ लाइफ इस्लाम इज। कैन यू इमेजिन, अभी पूरी न्यूरो साइंस हम यहाँ पर खोल दें तो हम सब सजदे में गिर पड़ेंगे कि जिक्र अस्कार, नमाज, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ और जो वर्ड्स रसूल अल्लाह ने सिखाए हैं, ये क्या क्या केमिकल रिलीज कराते हैं ब्रेन में, आप सोच भी नहीं सकते। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इस्लाम, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इस्लाम। डोपामीन, दिस इज द केमिकल आई वांट टू डिस्कस मोस्ट। अच्छा, बाय द वे लेट मी सी कि कोई मसला तो नहीं आ रहा अभी तक। आई होप के देयर इज नो इशू। इनफैक्ट अगर कोई इशू हो तो इंशाल्लाह रबीउल्लाह यू कैन टेल मी अगर कोई इशू हो ऑन माय फोन। डोपामीन इज अ केमिकल, और हमारी ये ब्रेन में इसके 7 सेंटर्स होते हैं, D1, D2, D3 अप टू D6। आई विल कम टू इट। डोपामीन कौन सा केमिकल है और व्हाट इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर? Dopamine is responsible for motivation, exploration, feeling rewarded, learning and developing new habits. डोपामीन के जो सेंटर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, जरा समझाने की कोशिश करता हूं। ये 7 सेंटर्स हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। डोपामीन के D1 जो सेंटर है, जो हमसे रेलेवेंट है, पेरेंट्स और टीचर्स से, इट इज द सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। वेन एवर अ पर्सन फील्स अकॉम्प्लिश्ड, डोपामीन निकलेगा उस सेंटर से, आपको राहत महसूस होगी, खुशी महसूस होगी, यू फील अकम्प्लिश्ड। स्ट्रेस होता है ना, काम नहीं किया, असाइनमेंट नहीं किया, डेडलाइन नहीं मीट की, और डेडलाइन आप मीट करते हो, सेंस ऑफ कंप्लीशन आती है, यू लिटरली फील हैप्पी। स्ट्रेस एकदम डाउन जाता है बिकॉज डोपामीन निकला। D1B सेंटर ऑफ कन्वीनियंस, हर वो काम जो मुश्किल से होना था आसानी से हो गया, इस सेंटर से डोपामीन निकलेगा, यू विल अगेन फील हैप्पी। D2 is the center of the degree of decrease in the perceived effort minus the actual effort divided by time, slash the actual effort divided by time, या slash time, so not divided by time, slash time। हर वो काम जिसके लिए बहुत एफर्ट लगानी थी, लेकिन वो कम टाइम में हो गया, कम एफर्ट से हो गया है, तो D2 सेंटर से डोप निकलेगा। जब डोप निकलता है तो याद रखें कि यू फील अकम्प्लिश, यू फील हैप्पी, यू फील इलेटेड। कहते हैं ना इलेटेड, खुशी महसूस हुई है। म्यूजिक डोपामीन रिलीज कराता है आपका, इसीलिए म्यूजिक से बंदा हाई फील करता है, इलेटेड फील करता है। तारीफ डोपामीन निकालती है, जो सेंटर ऑफ रिकग्निशन, प्रेज आ रहा है, जो सबसे खतरनाक सेंटर है, जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनडायरेक्टली इशारा तो यही है ना, हजरत उमर बिन अल खत्ताब ने भी कहा कि जो बंदा तुम्हारे मुंह पे तारीफ करे उसके मुंह में खाक डाल दो। यानी तारीफ बहुत नुकसान करती है। एनीवे, बच्चों की तारीफ तो जाहिर है करनी चाहिए, अप्रिसिएशन करनी चाहिए, हम करते भी हैं। मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ साइड पे, जब भी ऐसा काम होगा जो कम एफर्ट में हुआ है, कम टाइम में हुआ है, इस सेंटर से डोप निकलेगी। डोप निकलेगी, आप तस्कीन महसूस करेंगे, हाई फील करेंगे। D3 द सेंटर ऑफ सेंटर, व्हेन यू आर प्रेज्ड, जब भी आपकी तारीफ होगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, इस सेंटर में से डोप निकलेगी। अब खतरनाक बात क्या है, यू सॉरी जस्ट अ मोमेंट, यस,
खतरनाक बात क्या है, आज की जो सिविलाइजेशन है, जो लाइफस्टाइल है, कन्वीनियंस की पीक है, कन्वीनियंस की पीक है। अब मेहनत का आदी हमारा स्टूडेंट नहीं रहा है, क्योंकि हर चीज का शॉर्टकट है। गूगल पे हर असाइनमेंट पड़ी हुई है, एक क्लिक पे हर किताब पड़ी हुई है। यू डोंट नीड टू गो टू लाइब्रेरीज, यू डोंट नीड टू गो टू सर्च एनी प्लेस। टैक्सी बुक करानी है, बस स्टॉप पे पहले जाना पड़ता था, टैक्सी ढूंढनी पड़ती थी, रिक्शे वाले से बहस करनी पड़ती थी। अब उबर और करीम का दौर है। कन्वीनियंस चेक करें, नेट पे हर चीज कन्वीनियंट है, अनबिलीवेबली कन्वीनियंट है। शॉपिंग सेंटर्स यहां आ चुके हैं, लैपटॉप पे आ चुके हैं, अलीबाबा, amazon, दराज.pk, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। कन्वीनियंस, सोच सकते हैं हमारे बच्चे का लाइफ कितना कन्वीनियंट हो चुका है। तो सोचें उसका ये सेंटर कितना बड़ा है, अनबिलीवेबली लार्ज। कैसे मेहनत का आदी होगा। फिर सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, जब ये सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट इतना बढ़ जाए कि बच्चा टास्क अपॉन टास्क कर रहा है, अकॉम्प्लिश अपॉन अकॉम्प्लिश कर रहा है, और उसकी तरबिया नहीं हो रही, उसको ह्यूमिलिटी का दर्स नहीं दिया जा रहा है, वो तो नार्सिसिस्ट बनेगा, वो तो नार्सिसिज्म की तरफ जाएगा। नार्सिसिस्ट होता है प्राउड एंड एरोगेंट पर्सन हु इज ऑल अबाउट मी, मी एंड मी। बहुत से लोग नार्सिसिस्ट हैं सेल्फी कल्चर की वजह से, दे आर ऑल अबाउट देयर प्रेज। देन इमेजिन कि आज के डोपामीन वाले दौर में शॉर्टकट्स कितने अवेलेबल हैं, कम टाइम में काम हो जाता है, कम टाइम में। आपकी सोच है, आप बच्चे को असाइनमेंट देते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद करेगा, उसके बाद शॉर्टकट है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स पे एक लाइक लड़का बैठा हुआ है, उस ग्रुप में वो असाइनमेंट करता है, वो वहां पे असाइनमेंट शेयर करता है, सारे व्हाट्सएप से कॉपी करते हैं। ये ही इस दौर में हम रह रहे हैं। हमारे दौर में कॉल करनी पड़ती थी, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, यार मुझे भी दिखा दो। व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर हुआ, सबने कॉपी की, अगले दिन सब असाइनमेंट लेकर आए, टीचर खुश हो गया, सबने की है। तो दिस इज द चैलेंज। Why will our student, like to study? Why will he like to do things which demand more time, which demand more effort, when everything is conveniently available? इसलिए बहुत बड़ा एजुकेशन, हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये चीज। D3 is the center of recognition, and this is so dangerous. According to a psychological scientific study, when a person receives one like at Facebook at his display picture or her DP, it is equivalent to the dope received by one cigarette. एक लाइक का मतलब है एक सिगरेट जितना डोप। और एक्सबॉक्स में जब बच्चा फीफा खेल रहा है, ये भी स्टडी है, और वो गोल करता है और उसे सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होती है, उसकी तारीफ होती है दोस्तों में, जब वो डोटा खेल रहा है, जब वो पबजी खेल रहा है, और ऑनलाइन उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं, यू विल बी अमेज्ड टू नो द अमाउंट ऑफ डोप कि आमतौर पे उसकी तारीफ की जाए और कंपेयर टू ऑनलाइन उसकी तारीफ की जाए, दोस्तों से की जाए, 1000 टाइम्स मोर ज्यादा, 1000 टाइम्स डोप सेंटर ज्यादा ट्रिगर होता है। ओके, डायलेट ज्यादा होता है। दिस इज व्हाट आई मीन, ये मैं आगे जाके मजीद आपको समझाऊंगा। नाउ इमेजिन उसके डोप सेंटर्स डाइल्यूटेड हैं, अकॉम्प्लिशमेंट बहुत ज्यादा है, कन्वीनियंस हर जगह है, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिक्रीज इन द परसीव्ड एफर्ट एंड टाइम जो है बहुत ज्यादा है। सेंटर ऑफ रिकग्निशन, प्रेज कितनी ज्यादा, हर तरफ से प्रेज है, इंस्टाग्राम से प्रेज है, फेसबुक से प्रेज है, झूठी तारीफें है ना। एक डीपी लगा ली, जाहिर है आफ्टर इफेक्ट्स में जाकर जरा फिल्टर लगा के, इंस्टा पे तो फिल्टर्स बहुत है ना, फिल्टर लगाते हैं, तारीफ की जाती है, को पोस्ट शेयर करते हैं, तारीफ की जाती है। कैन यू बिलीव इट, उनके डोप सेंटर्स कितने डाइल्यूटेड है। एंड व्हाट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटेड डोप सेंटर्स? लेट मी टेल यू, डोंट बी स्केयर्ड। Dopamine is actually called the zombie chemical, because if it is not countered by other chemicals, especially oxytocin, it will make a child arrogant, superiority complex, populism, even depression. Because when a child is not getting the same amount of dope, वो डिप्रेस होगा, क्योंकि इसके डोप सेंटर्स बढ़ गए हैं। जैसे फूल की एक कली होती है,
वो कली पहले छोटी सी होती है, उसको आप पानी देते हैं वो कली और बढ़ती है, और पानी देते हैं और बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते वो इतनी बड़ी हो जाती है, फूल निकल आता है, डोपामीन सेंटर्स बढ़ते हैं डोप निकलने से। अब जब आप इतनी आदत दे लगा ली है बच्चों ने सेल फोन से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सेंटर ऑफ रिकग्निशन तो बढ़ गया इतना ज्यादा। एवरी टाइम उसको वो सेंटर ऑफ रिकग्निशन नहीं मिलेगी, वो पबजी जब तक नहीं खेलेगा वो डिप्रेस्ड होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो इरिटेटेड होगा, वो आपसे बहस करेगा, वो आपसे रेबल करेगा, वो आपके अगेंस्ट जाएगा, वो टीचर्स को तंग करेगा, वो क्लासरूम में जाकर सोएगा। दिस इज हिज हिज वे ऑफ शोइंग द प्रोटेस्ट कि तुमने मेरा सेलफोन मुझसे छीना है, तुमने पबजी मुझसे छीनी है, अब देखो मैं क्या करता हूं। दिस इज द चैलेंज। Ungratefulness, one of the after effects of high level of dopamine. Ungratefulness, impatience, जो डोपामीन ही इतनी बढ़ गई, वो बच्चा कहां से उसमें सबर होगा, कहां से कंपोज्ड होगा, बेचैनी का शिकार, अनकंपोज्ड, ऑल द टाइम अनकंपोज्ड, पता ही नहीं जिंदगी में क्या करना है, पता ही नहीं कौन सी लाइन लेनी है, बस जो लोग जो कर रहे हैं वो करना है क्योंकि दिस इज फेमस। डोपामीन इंड्यूस्ड जो ब्रेन होता है ना, वो हमेशा इट गोज फॉर शॉर्टकट्स, इट गोज फॉर थिंग्स दैट आर सो कॉल्ड कूल, इट गोज फॉर थिंग्स दैट आर फेमस। ओके, उसमें फिर सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। एंड देन सेल्फिश, एक्सट्रीमली सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल। माँ बाप एटीएम की मशीन, बाप एटीएम की मशीन है, वालदा नौकरानी है, लंच देती है, मोजे जो है तैयार करती है, कपड़े इस्त्री करवाती है, सुबह जो है मुझे प्यार करके भेजती है, वो नौकरानी है। बाप एटीएम की मशीन है, वेन एवर आई नीड पॉकेट मनी, जब मैं जो कहूंगा वो मुझे लेकर देगा। वाई? बिकॉज उसमें वो रियलाइजेशन ही नहीं है, मैं भी माँ बाप की कुछ हेल्प कर दूं, मैं भी कुछ हाथ बटा दूं, मैं भी अम्मी की कुछ मदद कर दूं, क्यों करे? उसे डोप चाहिए, भी सीधी सी बात है। देन लैक ऑफ फोकस, अनबिलीवेबल लैक ऑफ फोकस। अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिकल रिसर्च, देयर आर मेनी, मैं आपको एक बताता हूं, और भी बहुत है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उनका फोकस मेजर किया गया। इट वॉज फाउंड कि टीनेजर्स का फोकस टू लिसन टू समथिंग इज लेस देन 30 सेकेंड, उस ग्रुप, उस खास ग्रुप का। और आई एम प्रिटी मच श्योर हमारे स्टूडेंट्स का भी, 1 मिनट 1.5 मिनट बाद वो कहीं और पहुंच जाते हैं, या फुटबॉल मैच चल रहा होता है, या क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे होते हैं, या कोई बुलिंग का इंसिडेंट चल रहा होता है माइंड में, या घर का कुछ चल रहा होता है, या कोई और चीज चल रही होती है, फोकस आउट। अगर टीचर उनको ना इन्वॉल्व कर सका तो दे गो कंप्लीटली आउट ऑफ फोकस, दे डोंट इवन आर लिसनिंग टू यू। वाई? बिकॉज डोपामीन दुश्मन है फोकस का, ये मैं आपको बता दूं। अब ये कुछ लीडर्स कंपेयर किए हुए इन्होंने, जो डोपामिन इंड्यूस लीडर्स हैं और ऑक्सीटोसिन इंड्यूस लीडर्स हैं। देखें, ऑक्सीटोसिन ये वाले लीडर्स पैदा करेगा जिनके ह्यूमैनिटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रॉब्लम बेस्ड पर्पस है, लैक ऑफ पर्सनल गेन है, ग्लोबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अचीवमेंट है। डोपामीन बेस्ड जो लीडर्स हैं, दे आर कम्युनिटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमैनिटी बेस्ड नहीं, कम्युनिटी को क्या फायदा है वो हमेशा ये सोचेंगे, कम्युनिटी का गेन क्या है, मेरे लोग का क्या गेन, क्या है मेरा गेन, क्या है इसमें। लैक ऑफ एम्पैथी होगी उनमें, सिवियर लैक ऑफ एम्पैथी, जैसे हिटलर था। मायोपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट का डिटर्मिनेंट क्या है, सक्सेस का डिटर्मिनेंट क्या है, फेमस होना। देयर इज अ रीजन हमारा बच्चा दीनी लोगों को बेकार समझता है, अनकूल समझता है, और आतिफ असलम को और ये फुटबॉलर्स को, रोनाल्डो को, मेसी को वो हीरो समझता है। देयर इज अ रीजन वो सहाबा की स्टोरीज से भागता है, और वो इन लोग को जो है लिटरली जो है वो सहाबा से ज्यादा दर्जा देता है। सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स। व्हाई? बिकॉज जिन चीजों के साथ वो अटैच्ड है, जो माइंडसेट उसका बन चुका है, वो मायोपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ अचीवमेंट का माइंडसेट, कि सक्सेस इज ऑल अबाउट बीइंग फेमस, बी हैविंग सब्सक्राइबर्स, मेकिंग मनी। एंड अनफॉर्चुनेटली आवर एजुकेशन सिस्टम इज डोपामीन इंड्यूस्ड। ये मैं आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा, ये हर वो स्कूल जिसमें दीनी तरबियत कोई नहीं हो रही, वो डोपामीन इंड्यूस कर रहा है बच्चों में। कंपटीशन का सेंस बिल्ड कर रहा है, एक्सट्रीम एप्रिसिएशन है, बात बात पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, बात बात पे स्टेज पे बुलाया जा रहा है पेरेंट्स को खुश करके, बच्चों में राइवलरी क्रिएट की जा रही है, दीनी तरबियत कोई हो नहीं रही है, मोरालिटी को बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है,
इवेंट्स करवाए जाते हैं, वो इवेंट्स कंप्लीटली डोपामीन देने वाले इवेंट्स हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, अच्छी बात है स्पोर्ट्स इवेंट्स, लेकिन अगर वो कंट्रोल इवेंट्स नहीं है, उनमें कॉन्सर्ट हो रहा है, उनमें जो है वो हुल्लड़बाजी हो रही है, जो सीधी सी बात है, तो फिर ये बच्चा मायोपिक अचीवमेंट को अपना पैरामीटर बनाएगा। इसका माइंडसेट होगा कि ये है कामयाबी असल में। तो तरबिया हेड्स का रोल ये है कि वो बच्चे का ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करवाएं, वो कंटेंट वो लेकर आए कि वो यहां से शो करें कि नहीं ये कूल लोग हैं, सहाबा कूल लोग हैं, तुम जिनको कूल समझ रहे हो, तुम जिनको आइडियल्स बना रहे हो, ये बात है असल में। उसका माइंडसेट, उसका विजन चेंज करना, उसमें तहरीक पैदा करना, बच्चे में कॉन्फिडेंस लेकर आना दीन के बारे में, पेरेंटिंग में भी और टीचर्स का भी और तरबिया हेड्स का भी ये रोल है कि वो बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे मुसलमान होने पे। ओके, और इसके बहुत से तरीके इंशाल्लाह वील डिस्कस, टाइम भी जरा ज्यादा हो रहा है। बहुत से आगे एग्जांपल है, शेख हसीना महातीर मोहम्मद, शी इज डोपामिन इंड्यूस्ड, ही इज ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड, and Bill Gates is obviously oxytocin induced. Now all these things are increasing our dopamine because they are convenient, they are available, they are the centers for praise मिलती है बच्चे को, वो डीपी लगाता है, वो मोटरवे पे जा रहा है, गाड़ी की वीडियो बनाता है, इंस्टाग्राम पे लगाता है, मरी जाता है, वीडियो बनाकर दोस्तों को दिखाता है, वो खाना खाने लगता है, पिक्चर खींचता है, वीडियो बनाता है, क्योंकि उसको डोप की वैल्यू चाहिए, उसको डोप चाहिए। अगर उसको डोप नहीं मिलेगी वो बेचैन रहेगा। एक दिन अगर आप उसका मोबाइल छीन लेंगे तो वो ऐसे तड़पेगा जैसे एक एडिक्ट तड़पता है, जो सीधी सी बात है। एडिक्शन की एक निशानी, डोपामीन के फिजिकल इफेक्ट्स भी आपको बता दूं, आपके बच्चे की बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीब हो जाएगी। जब उससे मोबाइल फोन छीनेंगे, वो कभी इस तरह हाथों को मोड़ेगा, कभी वो इस तरह कर लेगा, कभी वो सोफे के साथ अजीबो गरीब मूवमेंट्स बनाने लग जाएगा, बिकॉज देर इज एंजाइटी इन दैट चाइल्ड कि मेरे से वो चीज छीन ली गई है। ओके, दिस इज द चैलेंज आई एम टॉकिंग अबाउट। द हाफ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इज बेस्ड ओनली ऑन द डोपामीन सेंटर्स टेंडेंसी टू डायलेट। ये एक टेक्निकल बात है, असल में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, उनके नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, बिकॉज हाफ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत कम हो चुकी है। यूथ ने चैलेंज बना दिया कंपनीज के लिए, कंज्यूमरिज्म पीक पे है। देर इज अ रीजन कि ये मोबिलिंक और टेलीनोर और इनके एड्स आप नए नए देखते हैं, यूफोन के नए नए एड्स देखते हैं और बार बार देखते हैं, और नए नए प्रोडक्ट्स देखते हैं, नए नए फ्यूचर्स देखते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत हाई है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चे को आप आराम से स्कूल में पढ़ा लेंगे, आप उसको सिमिलर कंटेंट, रेपिटेटिव कंटेंट पढ़ा के एंगेज कर लेंगे, आप उसको सिंपल स्टोरीज सुना के एंगेज कर लेंगे? ये बच्चा कंज्यूमरिज्म के दौर में रह रहा है। ये बच्चे के डोपामीन सेंटर्स किस लेवल पे हैं आप सोच भी नहीं सकते। एमएम में वैल्यूज इसकी 100 टाइम्स ज्यादा है ओल्ड पीपल से, मिलीमीटर्स, नैनोमीटर्स में, सॉरी, नैनोमीटर में मेजर होता है डोप सेंटर। डू यू थिंक यू कैन एंगेज दिस चाइल्ड बाय ओल्ड एजुकेशन टेक्निक्स, simply by talking and not actually connecting, not conducting any activity, not bringing new content, not bringing fabulous content, not bringing projector पे content? This is the challenge, this is the challenge। आपका स्टूडेंट को एंगेज करना आसान नहीं है आज के दौर में, क्योंकि उसकी वो प्रोडक्ट की हाफ लाइफ बहुत कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द कंज्यूमरिज्म, जो कंज्यूमरिज्म की फिलॉसफी है। एंड देन डोपामीन के हवाले से ये कुछ सोर्सेज हैं डोपामीन की। जाहिर है इन चीजों से बहुत डोप मिलता है, बिकॉज सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, चॉकलेट खाने से डोप मिलता है, ये सारे फूड्स डोप इंड्यूसिंग है, ये चीजें सारी डोप इंड्यूसिंग है। फुटबॉल मैचेस हो गए, टीवी सीरीज हो गई, टीवी सीरीज हमारे दौर में स्टॉपिंग क्यूज होते थे, आपके दौर में, इनके दौर में स्टॉपिंग क्यूज नहीं है। व्हाट इज अ स्टॉपिंग क्यू? मैं और आप क्रिकेट खेलते थे, मगरिब हो जाती थी, हमें पता है क्रिकेट खत्म, घर चलो। 3 ओवर्स खत्म हो गए, हमें पता है क्रिकेट खत्म, घर चलो। टेबल टेनिस खेल रहे हैं, 20 पॉइंट्स के बाद मैच खत्म, स्टॉपिंग क्यू है, घर चलो। बुक पढ़ रहे हैं, बुक का आखिरी पेज आ गया, स्टॉपिंग क्यू है, बुक खत्म, चलो बस सो जाओ। इनका स्टॉपिंग क्यू क्या है बेचारों का? यूट्यूब स्टॉपिंग क्यू है, एंडलेस कंटेंट, कंटेंट अपॉन कंटेंट अपॉन कंटेंट। फेसबुक पे कोई स्टॉपिंग क्यू है? पेज अपॉन पेजेस, मीम्स। हमारे बच्चा मीम देखता है, मीम बनाता है, टीचर्स की बनाता
हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बनाते हैं, आपको अंदर की बातें शायद नहीं पता, कितने पेजेस बने होते हैं मीम्स के, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं जहां टीचर्स की पिक्चर्स खिंच के आ रही होती है, बच्चे मॉक कर रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एम्पथी। हया और एम्पथी जब चली जाए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, फिर ऐसे चाइल्ड से, ऐसे इंडिविजुअल से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमारे बच्चों को इन चीजों से दूर रखे इंशाल्लाह, इसीलिए हम ये लेक्चर सुन रहे हैं। अब होता क्या है कि नेटफ्लिक्स पे भी कोई स्टॉपिंग क्यों नहीं है, एक एपिसोड खत्म दूसरी पड़ी हुई है, दूसरी खत्म तीसरी पड़ी है, तीसरी खत्म चौथी पड़ी है, एक सीजन खत्म दूसरा सीजन, एक टीवी सीरीज खत्म दूसरी टीवी सीरीज पड़ी हुई है। करे क्या आपका चाइल्ड, कहाँ जाए, स्टॉपिंग क्यों है ही नहीं। फेसबुक पे स्टॉपिंग क्यों नहीं है, यूट्यूब पे स्टॉपिंग क्यों नहीं है, नेटफ्लिक्स पे स्टॉपिंग क्यों नहीं है। ऊपर से उस बेचारे का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स भी नहीं बना हुआ है, सेल्फ कंट्रोल कहां से लाए। चैलेंज आपको पता लग रहा है, बच्चे का चैलेंज क्या है, आपके टीनेजर का चैलेंज क्या है। ऊपर से रिजिड पेरेंटिंग, कि बच्चे को अपनी उम्र का समझना और बच्चे से एक्सपेक्ट करना कि जिस तरह हम चीजों को समझते हैं, हम कुरान और हदीस को समझते हैं, वो भी समझेगा। इमेजिन द चैलेंज, इमेजिन द स्ट्रेस दैट अ टीनेजर गोज थ्रू। तो क्या है हल, इंशाल्लाह क्विकली हल की तरफ भी आते हैं, टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है। एन एवरेज टीनेजर्स बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ टू मच डोप दे विल ओनली गो फॉर थिंग्स विच आर नंबर वन रिवॉर्डिंग, प्लेजरेबल, कूल, इंस्टेंटली अवेलेबल, शॉर्टकट। दिस इज इट। यू एक्सपेक्ट देम टू ऑफर सलाह, उसका डोप लेवल कहां पर है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वुजू करेगा खुद से, वो इतना सेल्फ मोटिवेटेड होगा, वो उठकर गेम छोड़कर वुजू करने जाएगा, वुजू करके चल के मस्जिद तक जाएगा। जब उसको पता है मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ, जाए नमाज यहां पर है, या जब उसको पता है मैं डिसीव कर सकता हूँ, मस्जिद क्यों जाएगा। फॉर हिम नमाज इज नॉट कूल, एंड ऑफ स्टोरी। फॉर हिम नमाज इज नॉट रिवॉर्डिंग, क्योंकि इंस्टेंट रिवॉर्ड तो कोई नहीं मिल रहा। फॉर हिम नमाज इज, यू नो, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, वुजू करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। व्हाई शुड यू ऑफर सलाह, अगर उसका डोप लेवल ज्यादा है, ये बात है, ठीक है, अगर डोप लेवल ज्यादा है, व्हाई शुड यू ऑफर सलाह। दे विल अवॉइड एनीथिंग दैट डिमांड्स फोकस, दैट डिमांड्स हार्ड वर्क, दैट डिमांड्स पेशेंस, कंपोजर एंड इज इमोशनल। क्या आपने कभी किसी टीनेजर को रोते देखा है गुनाहों पे? वेरी रेयर। होते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल होते हैं। मैं आपको ऐसे टीनेजर्स की मिसालें दे सकता हूं जो नमाज के बाद लिटरली दुआ कर रहे होते हैं हैंड रेस करके, अल्लाह की बड़ी रहमत है उन पे। मैं बात कर रहा हूं मेजॉरिटी की। इमोशनल होना टीनेजर के लिए, वो भी दीनी बातों पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि जाहिर है कि ऑक्सीटोसिन कम है, डोपामीन बहुत ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली। दे विल अवॉइड एनीथिंग दैट डिमांड्स फोकस, डिमांड्स हार्ड वर्क, पेशेंस, कंपोजर। टीनेजर मेहनत से भागेगा, टीनेजर लंबे लेक्चर से भागेगा, टीनेजर फोकस होने से भागेगा, टीनेजर हार्ड वर्क से भागेगा। स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका डोप लेवल बहुत ज्यादा है, जिनकी पेरेंटिंग में मसले हैं, वो क्लास में सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर्स होते हैं। वो ना फोकस्ड होते हैं, वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी शो करते हैं क्लास में, वो डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट करते हैं, और दे हेट हार्ड वर्क, दे विल नॉट डू हार्ड वर्क, दे विल अडॉप्ट शॉर्टकट, दे विल ऑलवेज कॉपी फ्रॉम अदर फ्रेंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Effects of overdosage of dope. Procrastination. A person with high level of dopamine will always delay task. Delay करो, कल कर लूंगा, क्योंकि मेहनत की आदत नहीं। डेडलाइन पर जाकर वो काम करेगा, वो भी करेगा कि नहीं करेगा गारंटी नहीं है। एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टेड एंड इम्पेशेंट। डिस्ट्रैक्टेड, आप उससे बात कर रहे हैं, उसका चेहरा ही कहीं और है, उसकी नजरें ही कहीं और है, उसका दिमाग ही कहीं और चल रहा है। डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड। लेजी, very lazy, because dopamine makes you attach with comfort zone. There is a reason कि हमारे ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये वाली बंदा लैपटॉप लेकर बैठा हुआ है, बस उसका दिल है मैं इसी तरह बैठा रहूं। कौन उठेगा नमाज पढ़ने जब इतना कंफर्ट जोन है कि भाई लैपटॉप गोद में पड़ा हुआ है और उस पर नेटफ्लिक्स चल रहा है, टीवी सीरीज चल रही है, तो इट मेक्स यू लेजी। ओवरली अटैच विद डोप सोर्सेज सच एज दिस पिक्चर, एडिक्ट बन जाते हैं लोग। मी माई सेल्फ एंड आई, लैक ऑफ एम्पथी, कंफर्ट जोन से अटैच है, इरिटेटेड बिहेवियर, हर वक्त डिस्ग्रंटल्ड और इरिटेटेड बिहेवियर शो करना, छोटी छोटी बात पे गुस्से होना,
इरिटेशन होना, स्पेशली जब डोप की सोर्सेज को चैलेंज किया जाए. नाउ द बिग क्वेश्चन which you will ask me, how much screen time is okay, how much screen time is good? The answer is, according to modern science, 2 to 3 hours of screen time per day is good, healthy. Anything above 2 to 3 hours is unhealthy. ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है. मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कर रहा हूं. मोबाइल फोन पे स्क्रीन टाइम लिखा आता है. तो आप कोशिश ये करें. ये अनरियलिस्टिक होगा कि मैं आपको कहूं कि अपने टीनेज बच्चे से आईपैड और इस सारी चीजें छीन लें. मैं ये नहीं कहूंगा, कि अगर आप ऐसा करेंगे आप उसका कोर्टिसोल लेवल बहुत हाई पे ले जाएंगे, क्योंकि उसके दोस्त यूज कर रहे हैं, वो नहीं यूज करेगा, वो कॉम्प्लेक्स से ही मारा जाएगा बेचारा. मैं ये कहता हूं आप उसको एजुकेट करें, उसको सिखाएं, उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, उसको डिसिप्लिन होना सिखाएं, सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप्ड है, उसका नहीं है, आपने उसका डेवलप कराना. आप उसे डिसिप्लिन होना सिखाएं, आप उसे लिमिटेशंस में रहना सिखाएं, आप उसे बताएं कि बेटा इतना स्क्रीन टाइम हेल्थ के लिए डैमेजिंग है, एग्जांपल्स देकर समझाएं. ओके, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को ये वर्कशॉप बकायदा देते हैं. देन व्हाट इज द ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग पूछ सकते हैं. ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर इज ऑक्सीटोसिन बेस्ड. ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली गिवन, दे आर गिवर, they have empathy and they have haya. We as teachers and parents have to become the natural original world order back. किसी दौर में एम्पथी और ये मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ बड़ा जबरदस्त, कि एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी दौर में एम्पथी जो है ना, ये कॉमन सी चीज थी. इट वाज अ साइन ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग. बट टुडे एम्पथी इज अ ट्रेट ऑफ लीडरशिप. कैन यू बिलीव इट? एक दौर में एम्पथी सिर्फ इंसान होने की निशानी थी, अब एम्पथी लीडरशिप की निशानी है, कि जो बंदा एम्पथेटिक है वो लीडर है. लीडरशिप का ट्रेट बन गया एम्पथी, बिकॉज बड़े कम लोगों में एम्पथी होती है. ओके, तो ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर इज दैट ऑफ एम्पथी एंड ऑक्सीटोसिन बेस्ड. नाउ टिपिकल ट्रबल टीन बिहेवियर्स मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हमसे. रिमेंबर, इन टीनेज 13 to 17 year old teenager will behave like this. और उसका हल क्या? लेट्स डिस्कस क्विकली. नंबर 1, टिपिकल टीनेज बिहेवियर इज चेंजिंग अपीयरेंस. चेन्स पहनेंगे, अंगूठियां पहनेंगे, गले में अजीबोगरीब सी चेन्स पहनेंगे, यहां पर जो है वो बैंगल्स, वो क्या होता है, ब्रेसलेट्स पहनना शुरू कर देंगे, बालों को डाई करना शुरू कर देंगे, अजीबोगरीब कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, अजीबोगरीब कलर्स पहनना शुरू करेंगे, नेल्स बढ़ाना शुरू करेंगे, फीमेल्स पर्टिकुलरली, एंड देन ऑब्वियसली हेयर स्टाइल्स अजीबोगरीब रखना शुरू कर देंगे. दिस इज नॉर्मल, दिस इज टिपिकल. मैंने भी किया था, आपने भी किया होगा. मसला क्या है? वार्निंग साइंस क्या है? टिपिकल जब तक है पैनिक नहीं होना. कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फैशन करने दें अपने बच्चे को, पैनिक ना हो. उससे उमर बिन, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं वो उमर बिन अल खत्ताब बन जाएगा आपका बच्चा, तो ये एक अनरियल एक्सपेक्टेशन है. हाँ, कि कुछ बच्चों पे बहुत अल्लाह की रहमत होती है, उनके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह ऐसे बच्चे जरूर बनेंगे भी, पैदा भी होंगे. मेजॉरिटी का टिपिकल टीन बिहेवियर चेंज ऑफ अपीयरेंस है. पैनिक नहीं होना, ना ही ताना देना, ना ही उन्हें बुरा फील कराना. हम बुरा फील कराते हैं टीचर्स. हाँ, स्कूल डिसिप्लिन और चीज है. मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल में उनको चेंज अलाउ कर दें, वो उन्हें समझाएं कि बेटा यहाँ पे नहीं. बाकी फैशन आपने करना है, आप जाओ पेरेंट्स से डिस्कस करो, आप देखो आपने क्या फैशन करना है. टैटूज बनाना चाहेंगे, बड़ा कुछ करना चाहेंगे, इट्स ओके. इस पे पैनिक नहीं होना, काउंसल करना है, समझाने की कोशिश करनी. वार्निंग साइन कब है, यानी ट्रबल कब बन जाएगा ये बिहेवियर? when changing appearance is accompanied by problems at school or other negative changes in behavior. For example, cutting and self harm. एक बच्चा फैशन में आके अपने आप पे कट्स लगाना शुरू कर दे और बहुत अजीबोगरीब फैशन करने लग जाए, दिस इज अ वार्निंग साइन. या वो बच्चा एक्सट्रीम वेट लॉस करे या बच्ची एक्सट्रीम वेट लॉस करे फिगर बनाने के लिए अपना अच्छा, या बहुत ज्यादा वेट गेन करने लगे, तो ये वार्निंग साइंस है अपीयरेंस के. ओके, अदरवाइज पैनिक ना हो, काउंसल करें. टिपिकल टीन बिहेवियर नेक्स्ट इज increased arguments and rebellious behavior because he is thinking from amygdala. Amygdala makes a child rebellious.
वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वर्क ही नहीं कर रहा उसका। डोंट पैनिक। वो आपसे बहुत आर्ग्यू करेगा, फुलिश आर्ग्यू करेगा, हमने अपने पेरेंट्स से किया था। बर्दाश्त करें, स्माइल करें। वो आपको रोल मॉडल तब लेगा जब वो ये देखेगा कि ये कितने कंपोज्ड है मेरे पेरेंट्स। स्पेशली मदर से मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ, प्लीज कंपोज रहा करें, प्लीज कंपोज रहा करें। आई टोटली अंडरस्टैंड, इंसान पैनिक होता है, इंसान डीकम्पोज हो जाता है, परेशान हो जाता है। प्लीज ट्राई योर बेस्ट नॉट टू पैनिक। प्लीज बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन्स मत डालें, बच्चों से अनरियल एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं, बच्चों को बात बात पे याद मत कराएं। टीनेजर्स की बात कर रहा हूं। खाना रख दिया है, रख कर कहें बेटा खा लो। बार बार मत फोर्स करें, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। वो गेम में इन्वॉल्व है, उसका कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, वो खाना नहीं खाएगा, आपको तंग करेगा और आप स्ट्रेस में आएंगे। उसको कॉन्सिक्वेंसेस रखेंगे, बेटा खाना खा लो, गर्म है खा लो अभी, आई विल कम आफ्टर 30 मिनट्स, खाया हो तुमने, बस दैट्स इट, दिस इज योर जॉब। सूरज से ज्यादा पीछे पड़ना, गुस्से ना हो बच्चों के आर्गुमेंट्स पे। आई नो पेरेंट्स जो गुस्से हो जाते हैं बच्चों के सवालों पे, बच्चे उनसे फुलिश आर्गुमेंट्स देते हैं, वो गुस्से हो जाते हैं। आपको नहीं पता वो फुलिश आर्गुमेंट कहाँ से ला रहा है, इंटरनेट से ला रहा है, उसका क्या कसूर है। वो अपने दोस्तों के पास बैठ कर आ रहा है, म्यूजिक पर डिस्कशन होती है दीनी पेरेंट्स की विद देयर सन, विद देयर डॉटर, वो अजीबोगरीब दलाइल लाता है, पेरेंट्स उससे ऐसे बहस कर रहे होते हैं जैसे पेरेंट्स थिंक कि ये आलम दीन है, इसको समझ आ रही है मैं क्या बहस कर रहा हूँ। प्लीज अपने आर्गुमेंट्स को ऐसे डिजाइन करें, एक तो कंपोज रहें, स्माइल करें, पेशेंस को लूज मत करें। आपका बच्चा आपको रोल मॉडल तब समझेगा जब वो कहेगा कि यार ये पैनिक ही नहीं हो रहे, कंपोज कितने ज्यादा है। फिर वो आपसे सीखेगा, उसका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स पे डेवलप होगा। ओके, तो चाइल्ड इंडिपेंडेंस सीख करना चाहता है इस एज में, इसलिए ही विल शो दिस टिपिकल बिहेवियर ऑफ ओवर आर्ग्यूइंग एंड रेबेलियस बिहेवियर। मेरे कुरान के स्टूडेंट्स स्किल में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुरान पढ़ाता हूँ, अल्लाह ताला ने ये सादत दी है, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि वल्लाही, अगर मैं आपको सवाल बता दूं आप कहेंगे ब्लास्फेमी है, ब्लास्फेमी, मुर्तद होने वाली चीजें हैं। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन वो क्या करें, वो इंटरनेट पर वो सवाल देख रहे हैं। कभी कभी इतनी बहस होती है कि एक आम अच्छे टीचर को भी गुस्सा चढ़ जाता है कि क्या कर रहे हैं। गुस्सा नहीं होना, कंपोज रहना है, हैंडल करना है उनके क्वेश्चंस को, जवाब देना है उनके सवालों का, सवालों को डायरेक्ट करना है, उन्हें सिखाना है बेटा कैसा सवाल करते हैं। फुलिश क्वेश्चंस और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में फर्क बताना उन्हें, ये आपकी जॉब है एज टीचर। स्नब नहीं करना उन्हें कि चुप करो ये भी कोई सवाल है, नो। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर देम, टू एड्रेस देम, चाहे वो सवाल जितना मर्जी अजीब है, चाहे वो आपसे ओवर आर्ग्यू कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स करते हैं मुझसे आर्ग्यू, दूसरे स्टूडेंट्स के सामने करते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई देम, आई ट्राई माई बेस्ट टू टीच देम कि आर्ग्यू भी कैसे करते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी गलती भी होती है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। इसलिए आपका बच्चा आपसे बहस कर रहा है, पैनिक ना हो, ये उसका टिपिकल बिहेवियर है। वार्निंग साइंस कब है, जब वो हर बात पे आर्ग्यू करने लगे, वॉयलेंस शो करने लगे, एट होम चीजें ब्रेक करने लगे, गाली गलौज करने लगे, सिबलिंग्स को मारने लगे, फाइट्स करने लगे। ये सारे रेड फ्लैग्स हैं, इसको कैसे ठीक करना है, वील कम टू इट इंशाल्लाह। नेक्स्ट टिपिकल टीन बिहेवियर इज मूड स्विंग। अ टीनेजर गोज थ्रू लॉट्स ऑफ मूड स्विंग्स, क्योंकि उसका कोर्टिसोल लेवल नेचुरली भी हाई होता है। टीन एज में ना सारे हॉर्मोन्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। क्रेस्ट और ट्रफ जो पीक होती है ना, अगर हम इस तरह से वेव ड्रॉ करें तो क्रेस्ट और ट्रफ दोनों पीक पर हैं, यानी उसका एम्पलीट्यूड, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन मैक्सिमम है। दैट्स वाई उसमें बहुत सी बिहेवियरल चेंजेस आप देखेंगे, बहुत मूड स्विंग्स देखेंगे, डिप्रेशन भी देखेंगे, एंग्जाइटी भी देखेंगे। इट्स ओके, डोंट गेट पैनिक्ड कि यार ये अचानक बैठे बैठे खुश होता है, अचानक इसे गुस्सा चढ़ जाता है, अचानक अजीबोगरीब बातें करने लग जाता है। टेक इट इजी, उसका हार्मोनल लेवल ऐसा है, प्लीज डोंट पैनिक, मदर से मेरी फिर रिक्वेस्ट है। वार्निंग साइंस क्या है, जब बहुत रैपिड चेंज आ जाए, पर्सनालिटी में बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर आ जाए, फॉलिंग ग्रेड्स हो, परसिस्टेंट सैडनेस हो, एंग्जाइटी हो, स्लीप प्रॉब्लम्स हो,
ये फिर, और वो सुसाइड कॉन्टेम्पलेट करने लगे, ये वार्निंग साइंस। जब तक वार्निंग साइंस नहीं आ रहे, डोंट पैनिक। टिपिकल टीन बिहेवियर। Next typical teen behavior is experimenting with new things, drugs such as drugs and alcohol. सिगरेट ट्राई करने की कोशिश करेगा, शीशा ट्राई करने की कोशिश करेगा, गलत चीज ट्राई करने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज हाउ हिज ब्रेन इज। इट्स ओके अगर आपने बेटे को पकड़ लिया स्मोकिंग करते हुए, बच्चे को स्कूल में पकड़ लिया, इट्स ओके। हाँ, उसको शो करे स्ट्रिक्टनेस, लेकिन अंदर अंदर आपको पता होना चाहिए इट्स टिपिकल। सैबोटाज ना कर दें उसको, बिल्कुल इसका कॉन्फिडेंस खेल ना कर दें, उसको काउंसल करें, प्यार से समझाएं, उसको बुरा फील मत कराएं इतना ज्यादा, उसको बुरा मशहूर मत करें। ये होता है, वो बुरा मशहूर हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, हमेशा के लिए बुरा बन जाता है। ये अभी कॉमन मिस्टेक्स मैं बताऊंगा। एक ट्रेनर एक ट्रेनिंग करा रहे थे, सलमान आसिफ सिद्दीकी उनका नाम है, बहुत जबरदस्त ट्रेनर है पेरेंटिंग के हवाले से। उन्होंने जिस रूम में पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्होंने पेरेंट्स से पूछा कि सच सच बताएं आपने स्मोकिंग तो की होगी। बहुत से फादर्स ने हाथ खड़ा किया। उन्होंने कहा आप तबाह हो गए हैं, आपका फ्यूचर बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा नहीं। ही सेड के these are some typical behaviors that human beings show. However, there are extreme health hazards of smoking, which you should educate the child or teenager कि ये फिर कॉन्सिक्वेंस है। वो आपसे आर्ग्यू करेगा, आप काउंटर आर्ग्यू करेंगे, आप आर्ग्यू करते रहेंगे बगैर गुस्से होते हुए, यहां तक कि उसका वो न्यूरॉन कनेक्शन डेवलप हो जाएगा कि मेरा बाप ठीक कह रहा है। लेकिन अगर आप गुस्सा करेंगे, स्नब करेंगे, तो मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ओके, इसीलिए पेरेंटिंग बहुत पेशेंस का काम है। तो इसलिए ये टिपिकल बिहेवियर है। ये ट्रबल जब बन जाएगा, जब ये हैबिचुअल चीज बन जाएगी, जब वो इसको एडिक्शन बना लेगा, और जब वो छुप छुप के काम करने लगे, फिर ये ट्रबल टीन बिहेवियर है, उसको कैसे सॉल्व करना है इंशाल्लाह विल कम टू इट। द नेक्स्ट टिपिकल टीन बिहेवियर इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंड्स देन पेरेंट्स। इट्स ओके, इट्स टिपिकल। इसीलिए इसका सोल्यूशन ये कि आपकी बात अगर वो नहीं मान रहा, तो उसके दोस्त अच्छे बनवाएं, क्योंकि दोस्तों की बात वो जरूर सुनेगा। उसकी कंपनी का ख्याल रखें। ओके, ये टिपिकल है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, फ्रेंड को ज्यादा देता है, डोंट पैनिक, डोंट थिंक वो नाफरमान हो गया। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंट थिंक कि वो तबाही की तरफ चला गया। ये टिपिकल बिहेवियर। वार्निंग साइंस ऑफ अ ट्रबल टीन। ये वार्निंग, ये ट्रबल तब बिहेवियर बन जाएगा जब वो आपका कोई भी ऑर्डर ना माने और वो फजूल किस्म के दोस्तों को फॉलो करे, फिर ये वार्निंग साइन है। हाँ, फिर परेशानी लेने की बात है। दीज आर सम ऑफ द टिपिकल टीन बिहेवियर्स आई हैव शेयर्ड विद यू। मकसद इनको शेयर करने का ये था कि अगर आपको ये टीनेज बिहेवियर नजर आए, तो पैनिक मत हो, टीनेजर को अंडरस्टैंड करें व्हाट ही और शी इज गोइंग थ्रू, उसके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें, उसके आर्ग्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करें, उसके ओवर आर्ग्यू को अंडरस्टैंड करें, उसके रिबेलियस एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करें, उसकी फैशन की नीड को अंडरस्टैंड करें, रिकग्नाइज करें, काउंसल करें, प्यार से समझाएं। रेड फ्लैग्स क्या है वो मैंने आपको बता दी। नाउ सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स, वेरी इंटरेस्टिंग। One of the biggest mistake that parents and teachers commit is telling the student or the child कि तुम तो बच्चे हो। ये सेंटेंस से नफरत है टीनेजर को। जब आप उसे कहेंगे कि तुम तो कल के बच्चे हो या तुम तो बच्चे हो, तो वो कहेगा अब मैं बड़ा बन के दिखाता हूं, और वो आपको बड़ा बन के सिगरेट पी के दिखाएगा, या वो आपको बड़ा बन के कोई ऐसा काम करके दिखाएगा जो थग्स, क्रिमिनल्स और बुलीज करते हैं। तो प्लीज बच्चे को ये ना कहें तुम तो अभी बच्चे हो, क्योंकि तुम तो अभी बच्चे हो का मतलब है आपने उसका एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट कर दिया, आपने उसको चैलेंज दे दिया कि तुम बच्चे हो, अब वो बड़ा बन के दिखाएगा आपको। ओके, तो इसलिए इस तरह के अल्फाज कहना बच्चे को, उसको बच्चा फील कराना, दिस इज नॉट वाइज। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, नॉट केटरिंग चाइल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स। मैं आपको मिसाल देता हूं। आपका 10 साल का, 12 साल का बच्चा या टीनेजर जिद कर रहा है, वो कहता है मैंने ये चीज लेनी ही लेनी है, मुझे एक्सबॉक्स दिला के दें, मुझे PS4 दिला के दें, मुझे आईफोन दिला के दें, मुझे मोबाइल फोन आईपैड दिला कर दें, मुझे ये 3 पीस सूट लेकर दें, मैंने पार्टी पे जाना है, हेलोवीन पे जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। आप क्या करेंगे?
थोड़ा बहुत समझाएंगे, नहीं समझेगा आप डांट देंगे। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ चाइल्ड की दो नीड्स एक्टिवेटेड है। इस प्रॉब्लम में उसकी दो साइकोलॉजिकल नीड्स एक्टिवेटेड है। नंबर वन, द नीड फॉर रिकग्निशन। नंबर टू, द नीड टू बी लव्ड। द नीड फॉर रिकग्निशन, द नीड टू बी लव्ड। अब्राहम मैस्लो, उसकी हायरार्की ऑफ नीड्स में द सेफ्टी नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, लव नीड्स है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। बिलोंगिंगनेस एंड लव, they go hand in hand. What will an intelligent parent do, especially father? वो बच्चे को कहेगा, जो थोड़े से अग्रेसिव पेरेंट्स हैं वो कमरे में बंद कर देंगे, वो बात भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाओ, या वो डांट टपट कर देंगे, स्नप कर देंगे। ठीक है, हमारे दौर में ये टेक्निक्स चल जाती थी, आज के बच्चे के साथ नहीं। आज का बच्चा सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, वो पोस्ट भी डाल देगा कि मेरे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, और वो कॉन्स्टेंटली पढ़ रहा है कि पेरेंट्स ज्यादतियां करते हैं। आपकी सोच है कैसा कैसा कंटेंट वो पढ़ रहा है। वीडियोस बन रही हैं टीनेजर्स की तरफ से कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ज्यादती करते हैं। जो कंपोज पेरेंट, इंटेलिजेंट पेरेंट है, वो उसकी दो नीड्स रिकग्नाइज करेगा, नीड फॉर रिकग्निशन, नीड फॉर लव। वो उसके पास आएगा, बहुत प्यार से कहेगा कि बेटा, आई कांट गिव इट टू यू because it's bad for you, but I do recognize your need for it. I totally understand, और मैं आपकी इस चीज को समझता हूं, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपके लिए नुकसानदेह है। एंड आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी हैं। उसको गले लगाएगा, दोनों नीड्स फिल हो गई। अटेंशन सीकिंग भी, नीड फॉर रिकग्निशन भी, कि मुझे आपका मसला समझ रहा हूं बेटा मैं, नीड फॉर रिकग्निशन एंड नीड फॉर लव, आपने गले भी लगा लिया। जब ये दोनों नीड्स आप नहीं देंगे तो वो और हाइपर होगा, वो और एग्रेसिव होगा। इसलिए बच्चे की नीड्स देखनी चाहिए कि इस वक्त उसका रूट इशू क्या है, रूट कॉज क्या है। नेक्स्ट मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इज अ साइकोलॉजिकल टर्म। बच्चे को टाइटल्स देना, देते रहना यहां तक कि वो वैसा ही बन जाए जो टाइटल आप दे रहे हैं। अगर टीचर एक बच्चे को कह रहा है तुम तो झूठे हो, तुम तो हो ही झूठे, वो बार बार बुरा फील कराता है। नालायक स्टूडेंट वो पिक कर लेते हैं, वो कहते हैं कि ये देखो, सबके सामने इंसल्ट करते हैं, कहते हैं तो है ही नालायक। या वो कहते हैं तुमसे क्या उम्मीद है, तुमने कौन सा सही आंसर बता देना। ये बच्चे की पर्सनैलिटी को शैटर करती है बात। और बच्चा, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब है कि आप उसमें वो एटीट्यूड फोर्सफुली भर रहे हैं। एक सच्चे को रोजाना झूठा कहना शुरू आप कर दें, वैसे ही मिसाल दे रहा हूं, झूठा है, झूठा है, झूठा है, वो कहेगा मैं वाकई झूठा हूं, झूठा बन के दिखाएगा। वो फिर आकड़ में आके झूठा बन के दिखाएगा। एक स्टूडेंट लेट आता है, आप उसको नाम ही लेट कमर का दे देते हैं, ये लेट होता है, लेट होता है, लेट होता है, वो और लेट होगा। वो कहेगा मैं हूं ही लेट कमर, तो बस बात ही खत्म। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉजिटिव टाइटल्स देते थे बच्चों को। इब्ने उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, कितना ही प्यारा बच्चा है, कितना जबरदस्त बच्चा है, बस तहज्जुद पढ़ने लग जाए तो क्या ही बात है। एंड इब्ने उमर सेड, व्हेन आई हर्ड दिस आई नेवर लेफ्ट तहज्जुद। ये टेक्निक है। आपका बच्चा बहुत गेमिंग करता है, पबजी बहुत करता है, आपका क्या ख्याल है, आप पबजी को जो है वो बुरा भला कह के उसकी पबजी छुड़ा देंगे? टेक्निक लगा कर देखें, मैंने लगाई हुई है। हाउएवर ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ये मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ। जो लोग गेमें खेलते हैं, यस, शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी ज्यादा होती है, थोड़ी सी तारीफ भी करते हैं कि यार तुम गेमें खेलते हो तो बड़े इंटेलिजेंट हो, शार्प हो, लेकिन ये वाली गेमें, इससे तो डोपामीन रिलीज होता है। पूरी वर्कशॉप होनी चाहिए बच्चों के लिए, कौन सी गेमें ठीक है, कौन सी गेमें हार्मफुल है। जब हम बच्चे को हर वक्त टाइटल्स ही गलत देंगे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये तो है ही नालायक, ये तो है ही रिस्पॉन्सिबल, ये तो हर वक्त मोबाइल पे बैठा रहता है, तो बस वो कहेगा अब मैं मोबाइल पे ही बैठूंगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है। डिसिप्लिनिंग विदाउट पर्पस, सॉरी टाइम भी बस खत्म हो रहा है। डिसिप्लिनिंग विदाउट पर्पस से मुराद है कि डिसिप्लिन करना, उसको कमांड देना, लेकिन उस कमांड के पीछे उसको एजुकेट ना करना, हिकमत ना बताना। मिसाल के तौर,
एक बच्चा बीकन हाउस या एलजीएस के स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती रखता है, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लास फेलोज को हेलोवीन मनाते देखता है, और आप उसे सिर्फ इतना कह देते हैं कि खबरदार हेलोवीन मनाया, हेलोवीन मनाना हराम है और ये क्रिश्चियंस मनाते हैं। दैट्स ऑल यू सेड। उसको क्या पता क्रिश्चियनिटी क्या है, उसको क्या पता दीन इस्लाम क्या है, उसने कौन सा इतना पढ़ा है। वो तो बल्कि ये कहेगा कि यार हेलोवीन में तो मजा बहुत आता है, और अगर हेलोवीन क्रिश्चियंस मनाते हैं तो क्रिश्चियन ही हो जाओ, क्रिश्चियन होना बेहतर है। दिस इज हाउ दैट पर्सन विल थिंक, दैट चाइल्ड विल थिंक। आई एम टेलिंग यू कि फिर तो क्रिश्चियन अच्छे हुए, क्योंकि वो लाइफ को एंजॉय तो करते हैं ना। नो, ऐसे वर्ड्स नहीं कहने। एजुकेट करना है कि बेटा क्यों गलत है, फिलॉसफी बतानी है, फिलॉसफी बिहाइंड एनीथिंग। दिस इज द टाइम टू टेल हिम द फिलॉसफी एंड रीजनिंग बिहाइंड एनीथिंग। वो इस तरह काम डाउन नहीं होगा। इसलिए डिसिप्लिन करें, लेकिन डिसिप्लिन करने की वजह बताएं कि बेटा मैं क्यों आप पे पाबंदियां लगा रहा हूं, मैं क्यों कॉन्सिक्वेंसेस डिफाइन कर रहा हूं, मैं क्यों आपको आपके बिहेवियर पे पनिश कर रहा हूं। ये रीजंस हैं, ये पर्पस है इसके पीछे, और फिर देखें उसका बिहेवियर बहुत इंप्रूव होगा। और यहाँ पे फादर्स का रोल है, माजरत के साथ फादर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मैंने ज्यादा मदर्स को हमेशा पेरेंट्स डे पे आते देखा है, फादर्स कोई नहीं आते, बहुत कम आते हैं। मेरा 7 साल का टीचिंग का तजर्बा है, एंड आई एम श्योर मेरे से ज्यादा जिनका तजर्बा है, बहुत से ऐसे लोग होंगे वो इस बात की गवाही देंगे कि जिस बच्चे का बाप इन्वॉल्व है, बाप सीरियसली ले रहा है उसको, वो बच्चा कभी अनसक्सेसफुल होता मैंने नहीं देखा। यस, माँ का बहुत रोल है, लेकिन जो रोल बाप निभा सकता है, देयर हैव बीन स्टडीज कंडक्टेड कि जिनका वालिद इन्वॉल्व है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ बातें करता है, डिस्कशंस करता है, वो बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है, आईक्यू अच्छा होता है, एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है, एंड दे आर मोर कॉन्फिडेंट टू काउंटर बुलिंग इन द स्कूल। ये मैं आपको साइकोलॉजिकल रिसर्च चीज बता रहा हूं। इसलिए प्लीज, बाप का रोल सिर्फ पैसे देना और बच्चे से हालचाल पूछना नहीं है, बाप का रोल बहुत ज्यादा है, बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट है बाप की। और हाउ टू डील विद ट्रबल टीन्स, इंशाल्लाह इस पर हम बात खत्म करते हैं। मैंने आपको कॉमन मिस्टेक्स बताई पेरेंटिंग की और टीचिंग की। let me tell you 4 secrets of the teenage brain. Number 1, teenagers take a lot of risk. There was a study conducted in UK. टीनेजर्स को और एडल्ट्स को बिठाया गया एक रूम में, टीनेजर्स को जो है एक बॉक्स दिया गया, उस बॉक्स में रेड और ब्लू कार्ड्स थे। उन्हें नहीं बताया गया हाउ मेनी कार्ड्स आर रेड, हाउ मेनी आर ब्लू। उनको ये कहा गया कि अगर ब्लू कार्ड निकलेगा तो 5 पाउंड मिलेंगे, रेड कार्ड निकलेगा तो 10 पाउंड आपको देने पड़ेंगे। कितना बड़ा रिस्क है कि व्हाट इफ रेड कार्ड निकल गया और एक और रेड कार्ड निकल गया, ये तो मुझे 20 पाउंड देने पड़ेंगे इस बंदे को। देखा क्या गया एक्सपेरिमेंट से कि एडल्ट्स ने ये गेम बड़े तरीके से खेली, केयरफुली खेली, कुछ ने खेली नहीं। उन्होंने कहा नहीं भी नहीं, नुकसान ज्यादा है। टीनेजर्स ने सब ने खेली, सब ने नुकसान उठाया। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, रिस्क लो, चैलेंजिंग सिचुएशंस में जाओ। अब ये आपके लिए फायदेमंद कैसे है, इस चीज का टीचर्स फायदा उठाएं। दे लव टेकिंग रिस्क, दे लव बीइंग चैलेंज्ड। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें क्लासरूम में, रिस्की काम दें। रिस्की काम से मुराद अल्लाह माफ करे खतरनाक काम नहीं है, ऐसा काम दें जिसमें वो चैलेंज फील करें, लेकिन फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो फियर ऑफ फेलियर ना रखें, वो रिस्क लेना भी पसंद करे। चाहे स्टूडेंट रिस्क कैसे लेता है, ही रिस्क आस्किंग अ क्वेश्चन विच ही कंसिडर्स टू बी अ डम क्वेश्चन। दिस इज अ साइन कि यू आर अ गुड टीचर। वो आपसे सवाल करेगा, स्टूडेंट्स बाकी हंसेंगे ये क्या सवाल है, बट दिस इज योर सक्सेस एज अ टीचर कि यू हैव एम्पावर्ड दैट चाइल्ड टू टेक अ रिस्क टू आस्क अ क्वेश्चन। इसलिए इस चीज को यूज करें। नंबर 2, टीनेजर्स स्ट्रगल टू गेट इनफ स्लीप। लेट मी टेल यू दिस साइंटिफिक फैक्ट, दिस इज द पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन जो है वो निकलता है। मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, इट इज द स्लीप हार्मोन। सोने की गोलियों में इसीलिए जो स्लीप की टैबलेट्स होती हैं और स्लीपिंग पिल्स होती हैं, उनमें मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन कैसे रिलीज होता है, जब आपका ऑप्टिक नर्व, ये जो आंख की ऑप्टिक नर्व है, ये लाइट के लेवल को चेक करती है। जब रात को अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है और लाइट कम होती है रूम में,
इसीलिए कहते हैं ना अंधेरे में सोना जो है वो बड़ा बेनिफिशियल है। तो ये ऑप्टिक नर्व को जब लाइट कम आती है तो ये पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है, आपको नींद आ जाती है। आज का स्टूडेंट रात सोने से पहले ये लाइट अपनी आंख में मार रहा है, वेरी ब्राइट लाइट, मोबाइल फोन की, मेलाटोनिन उसका कोई नहीं निकलता, वो थक हार के जो है वो सोता है, सुबह वो क्लासों में आके सोता है। दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि वो रात को मोबाइल यूज करके सो रहा है। Now, teenagers struggle to get enough sleep. It is scientifically proven कि because of too much involved in mobile phones, iPads, वो रात को नहीं सोता, वो सुबह आकर सोता है, और नेचुरली भी उसको रात को लेट नींद आती है। ये टीनेज का साइकिल है, 11 12 1 बज जाते हैं टीनेजर को, मेलाटोनिन उसका लेट निकलता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिसर्च। नाउ you have to educate your student and your child about a good night sleep, and you have to actually tell them कि अच्छी नींद क्या होती है, कैसे ली जाती है, प्रोडक्टिव नींद क्या होती है। और एक बहुत अजीब बात मैं करने लगा हूं, आपको अजीब लगेगी। बहुत से इंस्टीट्यूट्स ने, जापानीज मल्टीनेशनल कंपनीज ने पावर नैप को फर्ज किया हुआ है अपने एम्प्लॉयज पे। जोंग में मेरे दोस्त होते हैं, जोंग ने बकायदा मैट्रेस बिछाए हुए अपने एम्प्लॉयज के लिए कि सो जाओ आधे घंटे के लिए, पावर नैप लो 12 बजे, 12:30 बजे। मदारिस में, मदरसों में कैलूला कराया जाता है स्टूडेंट्स को। मैं अब ये कहूंगा बात कि स्कूल में हमें कैलूला कराना चाहिए तो ये बहुत अजीब लगेगी एंड पेरेंट्स का बहुत एतराज आएगा, लेकिन खैर दिस कुड बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस। बट मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊँ, बिकॉज दे आर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स उनका वीक होता है, तो वो टीचर के इमोशंस को शायद सही से रीड नहीं कर पा रहे होते। इसलिए टीचर की इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होनी चाहिए, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये मत समझें कि अगर एक स्टूडेंट को समझ आ गई तो सबको समझ आ गई है। अपनी इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करें, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करें, क्योंकि टीनेजर्स डोंट रीड इमोशंस वेल, ये भी साइंटिफिक रिसर्च है। एंड लास्टली, teenagers have less self control again because they are using decision making from amygdala. Okay, so how as a teacher you can take advantage of this कि they have less self control, teach them self control, distraction से बचाएं उन्हें, ट्रबल स्टूडेंट्स को अलग बिठाएं, सीटिंग प्लान बनाएं क्लासेस का बहुत प्रॉपर, स्टूडेंट्स के सीटिंग प्लान ही ऐसे बनाएं कि डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट को आप उसका सर्कल तोड़ें, उसको ज्यादा इन्वॉल्व करें, उसको ज्यादा इनकरेज करें, उसको ज्यादा अप्रिशिएट करें। ये कुछ टेक्निक्स हैं टीचिंग के लिए और पेरेंट्स के लिए भी एग्जैक्टली यही है। एंड लास्टली, मैंने जैसे आपको फादर का इंडिस्पेंसिबल रोल बताया, एंड दीज आर सम ऑफ द टिप्स you as a parent and teacher can apply. Number one, connect with your troubled teen. There is a difference between connecting and communicating. Communicate less, connect more. ये रूल है। एक टीचर आकर पढ़ाता है चला जाता है, वो कम्युनिकेशन है। एक टीचर इन्वॉल्व करता है, बच्चे को नाम ले लेके बुलाता है, ये कनेक्शन है। डील विद टीन एंगर एंड वायलेंस, डील करना सीखे, कंपोज रहें। आपको कंपोज देख के वो कंपोजर को लर्न करेगा। वायलेंस को मैनेज करना सीखे, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ें। रिकग्नाइज द साइंस ऑफ टीन डिप्रेशन, ये जितनी मैंने आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाया है, हार्मोन समझाइए, ये रिकग्निशन करें कि टीनेज का टिपिकल बिहेवियर डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, एग्रेशन होता है। एड बैलेंस टू योर ट्रबल टीन्स लाइफ, बैलेंस सिखाएं उसे, स्पोर्ट्स खिलाएं। इट इज अ रिसर्च कि जो फादर्स अपने बच्चों के साथ क्लब जाते हैं, स्क्वाश खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या स्विमिंग करते हैं, उनके बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, उनके बच्चे सेल्फ कंट्रोल में अच्छे होते हैं, उनके बच्चों की लाइफ में बैलेंस होता है, फादर सिखाता है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ज्यादा स्ट्रेस ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड हो गए, आप हिम्मत हार गए तो बच्चा हाथ से निकल जाएगा। पैनिक मत हो, अपना ख्याल रखें, अपने आप को ओवर स्ट्रेस मत करें, मत परेशान हो कि बच्चा तबाही की तरफ जा रहा है। ये बच्चे के टिपिकल बिहेवियर हैं, अपने आप को गम से हलाक मत कर लें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह से दुआ करें। यूथ क्लब आपके सामने एग्जांपल्स हैं, हम सब का पास्ट बहुत बुरा है,
आपके बच्चे से पता नहीं कितना 10 टाइम ज्यादा मेरा पास बुरा है, तो क्या हम तबाह हो गए? अल्लाह ताला का शुक्र है, माओ की दुआ लगी है, पेरेंट्स की दुआ लगी है। हर एक का टाइम आता है। यस, कोशिश यही होनी चाहिए बच्चा शुरू से अच्छा हो, शुरू से दीनी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को जरूरत ज्यादा हलाक मत करें। अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, पीछे पड़ने की बजाय खामोशी से नाराजगी शो करके देखें एंड सी द रिजल्ट योरसेल्फ। स्पेशली मदर्स को मैं टिप दे रहा हूं, हर वक्त बच्चे के पीछे मत पड़ें। टीन एज की बात कर रहा हूं, छोटे की बात नहीं कर रहा। कभी नाराजगी भी शो करके देखें, खामोशी भी रख कर देखें, कभी उसको उसके हाल पे भी छोड़ कर देखें, उसको टाइम दें उसकी मिस्टेक से लर्न करने का। और फादर्स का यहाँ पे बहुत इंडिस्पेंसिबल रोल है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसके लिए माजरत है, क्योंकि कंटेंट कुछ ज़्यादा था। जज़ाकमुल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। I hope it was beneficial for all of you. Now I'm going to stop sharing my screen, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless our students. वो हमारा सरमाया है, वो हमारे बच्चे हैं। अल्लाह ताला, वो मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनको ईमान की ज़िंदगी दे, ईमान की मौत दे। अल्लाह ताला उनको सहाबा जैसा बनाए, सहाबा से मोहब्बत करने की तौफीक दे। हमारे लिए चैलेंज है, हमारा गोल ये है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा इंशाल्लाह उनकी तरबियत करें और उनको अंडरस्टैंड करें और अपनी स्ट्रैटेजीज को रिवाइज करें कि हाउ शुड वी टीच एंड हाउ शुड वी डील विद देयर इशूज। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Jazakallah khair Ali bhai for such a beneficial lecture, and I hope that this will benefit the teachers and the students as well. And I think that if there is any question we can ask, अगर किसी का कोई question है तो we can like extend for 5 minutes. If there any question, they can ask. एक क्वेश्चन है, हाउ टू ब्रेक दिस विशियस सर्कल ऑफ डोप। वेरी गुड क्वेश्चन, कि डोप को का विशियस सर्कल कैसे हम जो है कंट्रोल करें। मैंने आपको जैसे बताया ना कि बच्चे का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप नहीं है फुली, वो आपने डेवलप कराना है। अगर बच्चा माँ को बाप को मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते देख रहा है तो फिर भूल जाए कि वो आपकी बात कभी सुनेगा। सबसे पहले आपको खुद कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल दिखाना है। इस पेरेंटिंग आसान नहीं है, इसीलिए अगर आप ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं मोबाइल को तो बस फिर जो मर्जी आप उसे कहते हैं। सबसे पहले आपने अपने घर में डोप की सोर्सेज को कम से कम फोकियत देनी है। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ही डोप इंड्यूस्ड है कि आपके यहाँ अचीवमेंट्स को, वर्ल्डली अचीवमेंट्स को ज्यादा सराहा जाता है, आपके यहाँ सेलिब्रिटीज को ज्यादा सराहा जाता है, उसकी बच्चे की कंपनी ऐसी है जो सेलिब्रिटीज को ज्यादा पसंद करती है, गैजेट्स को ज्यादा पसंद करती है, तो फिर ये विशियस सर्कल बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करने का। इट्स ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू डू योरसेल्फ। बच्चे को एजुकेट करें, नुकसान बताएं डोप के। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वो समझते भी हैं। बिलीव यू मी, 6-7 क्लास का स्टूडेंट समझता है मेरी बातें जब मैं उसे मिसालें दे के समझाता हूँ कि बेटा जब तुम एक पिज्जा जरूरत से ज्यादा खाओगे तो उसका नुकसान है। KFC का बर्गर हर वक्त तुम नहीं खा सकते, यू नीड अदर थिंग्स एज वेल, यू नीड अदर हॉर्मोन्स एज वेल, नॉट जस्ट डोपामाइन एंड डोप। तो इस विशेष सर्कल को आपने खत्म कैसे करना है? पहले अपनी एग्जांपल के साथ। दूसरा, आपने जो है वो एक रूटीन डिफाइन करनी है, बच्चे को सिखाना है कि कब मोबाइल यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, कितना यूज करना है। आपने कॉन्सिक्वेंसेस रखनी है इस चीज के, और डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने घर में। ओके, दिस इज हाउ दिस विशियस सर्कल विल इंशाल्लाह स्लोली एंड स्टडीली इट विल बी ब्रोकन। Ali bhai, we have another question. और ये सॉरी टू ऐड, बच्चे को एक्टिविटीज दें, क्योंकि वो आपसे ये शिकायत करेगा कि अब मैं करूं क्या, आपने मोबाइल मेरा छीन लिया, आईपैड छीन लिया, अब मैं क्या करूं। कोई पेट पाल के दें, गार्डनिंग कराएं, कोई एक्सरसाइज में लगाएं, कोई क्लब ज्वाइन कराकर दिखाएं, सोशलाइज उससे ज्यादा कराएं। ओके, और उसके पीयर्स में उससे ज्यादा भेजें, उसकी तरबियत हो, तो फिर इंशाल्लाह ये विशियस सर्कल ऑफ डोप टूट भी जाएगा। जी, अदर क्वेश्चन?
My daughter is 4 years old, and I don't know why she always is questioning, and most of the time she sees everything from negative aspect and she picks bad habits more quickly. Kindly help, what can I do? देखें, ये तो प्योर ऐसा सवाल है कि साइकोलॉजिस्ट जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मैं तो बस एक आम सा स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हूँ। पहले तो आप ही किसी साइकोलॉजिस्ट से बच्चे का बिहेवियर डिस्कस करें, किसी काउंसलर से, किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट से, वो आपको बेहतर बताएगा सिम्टम्स देख के। आपकी बेटी को देखेगा, उससे थोड़ी सी बातचीत करेगा, अंदाजा लगाएगा कि वाई इज शी बिहेविंग लाइक दैट। बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी रीजन होती हैं। तो क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है कि वाई शी इज बिहेविंग लाइक दैट, तो शायद मैं आपको प्रॉपर आंसर ना कर सकूं। इंफॉर्मेशन ज्यादा होती तो मैं कर सकता, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि आप अपनी बेटी को बहुत ज्यादा एम्पैथी शो करें, बहुत अंडरस्टैंडिंग शो करें, उसके क्वेश्चंस को आंसर करें, और उसको जब भी वो आपने लास्ट बात जो की थी, एक बार फिर क्वेश्चन लाइएगा। क्वेश्चन जो है वो क्या था, लास्ट बात मेरे जहन से निकल रही कि नेगेटिव बातें वो बहुत सोचती है, नेगेटिव बातों को पिक बहुत वो करती है। तो आप उसको पॉजिटिव बातों पे रिवॉर्ड करना शुरू करें। कोई रिवॉर्ड दे, पॉजिटिव बात, कोई गिफ्ट दे, कोई खाने की चीज दे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना शुरू कर दें। इससे उसका क्लासिकल कंडीशनिंग इसे कहते हैं ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सॉरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग इन साइकोलॉजी। इससे उसका बिहेवियर स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव बिहेवियर स्ट्रांग होगा। और नेगेटिव बातें पिक करने पे देखें, ये मत कहें कि तुम बहुत बुरी हो गई हो, या ये बुरी बच्ची हो गई है, या पता नहीं इसको क्या हो गया। आप ये कहें कि इतनी अच्छी है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, ऐसी बातें क्यों करती है, तो इतनी अच्छी बच्ची है। पॉजिटिव अल्फाज यूज करें ताकि वो पॉजिटिविटी की तरफ। ओके, ये एक शॉर्ट आंसर है। बाकी किसी साइकोलॉजिस्ट से आप डिटेल डिस्कशन करें इंशाल्लाह। I think Ali, we should wind up, inshallah. Jazakallah khair once again to the listeners. We have another question, I guess. How to instill the habit of working hard and doing struggle in our children, as there are so many comforts and conveniences in life. देखें, इसके बहुत डिटेल आंसर है। पहली बात, घर में जो कल्चर होना चाहिए, जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो होना ही ऐसा चाहिए कि मेहनत को सराहना चाहिए, टास्क एलोकेशन होनी चाहिए, अचीवमेंट बेस्ड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे को सुपर मार्ट ले जाते हैं, अब आप अपने बच्चे को वहां पर जाकर टास्क दें कि बेटा प्राइसेस तुम देखो, प्राइस देखकर मुझे बताओ, मैं फिर बताऊंगा कौन सी चीज लेते हैं। तो उसको एक टास्क मिल गया, उसको प्राइस देखने की आदत हो गई, थोड़ी कोशिश करेगा, शुरू में रेजिस्ट करे शायद। तो मैं वैसे ही एक एक्टिविटी बता रहा हूँ, आप कोई और भी एक्टिविटी दे सकते हैं। जितने बच्चे को आप इन्वॉल्व करेंगे, एक्टिविटीज देंगे, बातें करेंगे उसके साथ, फिर ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे जिनमें मेहनत। कोई पेट पाल के दें, बेटा टेक केयर ऑफ द पेट, पूछे आपने पेट को खाना दिया बेटा, हैव यू टेकन केयर ऑफ पेट। कोई पौधा जो है लगा कर देंगे, बेटा ये आपकी जिम्मेदारी है। स्कूल्स को ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए जिसमें हार्ड वर्किंग उनकी नेचर डेवलप, इजीली उनको रिवॉर्ड मत दें। टीच देम कि यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट समवेयर, इन ऑर्डर टू हैव समथिंग। इसीलिए घर का एनवायरनमेंट अचीवमेंट बेस्ड रखें, हार्ड वर्किंग बेस्ड रखें, कन्वीनियंस की आदत कम कर दें, उनसे काम कराएं, चाहे उन्हें बुरा लगे, किसी ना किसी तरह उनसे काम कराना सीखें। और इंशाल्लाह जब उनका ऑक्सीटोसिन लेवल ज्यादा होगा, एंडोर्फिन ज्यादा होगा, जो कि एक्सरसाइज से डेवलप होता है, फिजिकल एक्टिविटीज से डेवलप होता है, ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह वो हार्ड वर्क की तरफ आ जाए। तो एक्सरसाइज भी उसे कराएं, फिजिकल एक्टिविटीज भी उसे कराएं। ये मैंने, यही तो पूरा लेक्चर था कि टीनेजर में कितनी हार्मोनल चेंजेस हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कोर्टिसोल लेवल्स पीक पर होते हैं, डोपामीन लेवल पीक पर होता है, ये जो है आपका बाकी के हार्मोन जो मैंने डिस्कस किए, ये पीक के लेवल पर होते हैं। हार्मोनल चेंज उसकी आ रही होती है, ब्रेन स्ट्रक्चर उसका चेंज हो रहा होता है।
उसकी वजह से मूड स्विंग्स आते हैं बच्चे में बहुत सी अजीबोगरीब चेंजेस आती हैं। इट्स नॉर्मल, इनको आप नॉर्मल तस्वुर करें। ये हमने भी आई थी जब हम टीनेजर थे। और बच्चे को फैसिलिटेट करें, बच्चे को हाथ पकड़ के चलना। अनफॉर्चुनेटली यस, ब्रोकन होम्स हमारी सोसाइटी में हैं फॉर वट एवर रीजन। तो बच्चे का कोई फिगर हेड होना चाहिए। अगर बच्चे का फादर चले, जिंदा तो है ना, ब्रोकन होम का मतलब ये तो नहीं ना कि मर गया, अल्लाह रहम करे फादर। बाप से मिलने से मत रोकें, बाप से मिलाएं बच्चे को, बाप के साथ इन टच रखें बच्चे को। ब्रोकन फैमिलीज का बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है अगर उसका बाप एब्सेंट है। जो मर्जी इख्तलाफ है वो मियाँ बीवी में, बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं। जो भी नफरतें हैं वो मियाँ बीवी में पैदा होती। बच्चे को विक्टिम मत बनाएं, बच्चे को बाप से मिलाएं। बच्चे का कोई फिगर हेड जरूर रखें, मेल फिगर हेड, मामू हो, चाचू हो, कोई भी हो, नाना हो, जो भी हो, लेकिन फादर फादर है, इसलिए फादर से बच्चे को अटैच रखें, जरूर मिलाएं। ये इसका आंसर। आई थिंक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरा 10 साल का बच्चा झूठ बोलना शुरू कर दिया उसने। इसका जवाब बहुत सिंपल है कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन वो झूठ बोलता है। उन रीजन को ट्रैक आउट करें। या बहुत रिजिड पेरेंटिंग है, बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है आपके घर का, जिसकी वजह से अब वो झूठ बोल के सहारा लेता है। या सेकंड बात है, उसके माइंड में कोई फियर्स हैं, फियर चल रही हैं, इस वजह से वो झूठ बोलता है। नंबर 3, वो बहुत कंपेयर करता है अपने दोस्तों के साथ, जिसकी वजह से उसको झूठ बोलने की आदत हो गई है। वो झूठ बोलकर अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है, अपने आप को कॉन्फिडेंट करता है, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ बताता है। प्लीज उस रीजन को फाइंड आउट करें, उस रीजन को टैकल करें, और झूठ बोलने पर जो है वो बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ लेकर जाएं। उसको आ, ये सिखाएं कि झूठ बोलना गुनाह है, और वो प्रैक्टिकली सिखाएं, स्टोरी सुनाकर और प्रैक्टिकली कुछ थोड़ी बहुत पनिशमेंट देकर भी। लेकिन सबसे पहले रीजन ट्रैक आउट करें कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये इसका आंसर। आई थिंक वी शुड एंड बिकॉज टाइम बहुत Yes. ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन रखेंगे तो सवाल नहीं है। Jazakallah khair, Ali bhai. And inshallah, we will try our best to bring this kind of session in the future as well. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम।